Good evening to ladies and gentlemen. We are starting a seminar, this webinar today, and I, Sri Amok Karan Jain, on behalf of Jaipur branch of CIRC, welcome you all in the webinar of the on the topic intricacies of ITC and important points for closure of books. And we have an excellent speaker today who can share his knowledge, his expertise on this topic. Now, before introducing our excellent speaker today, I would like to request Anil Yadav sir, our dynamic chairman of Jaipur branch, to give our special address and make us oblige. Over to you, sir. Thank you so much, Amok. A very good evening to all of you. And सबसे पहले आप सभी को गांधी जयंती जी की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती जी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज गांधी जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी है और एयर ऑफिस ICI की CSR कमेटी के थ्रू आज 150 जयपुर टोटल ब्रांचेस एंड जो हमारे रीजनल काउंसिल ऑफिस है उनके थ्रू सभी स्टेशनरी जो स्टूडेंट्स है उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इवन आज जयपुर ब्रांच में आज हमने भी लिया है कि जो फीमेल्स हैं, एज यू नो कि बहुत टाइम टफ चल रहा है, तो जो अंडर प्रिविलेज फीमेल्स है उसको हम लोग सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे थोड़ी सी सीख है हमारे अंदर कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी के अंदर। तो आपसे रिक्वेस्ट है जितनी आप प्लीज थोड़े आगे आइए, सपोर्ट करिए और सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन को आप लोग अपने लाइफ के अंदर आ जाती है कि हम बुक्स बांटते हैं, हम ये बांटते हैं, बट कहीं ना कहीं जब सैनिटरी पैड के नाम आते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उसके अंदर जो हमारी मेंटेलिटी हम लोग को कहते हैं कि उसके अंदर कुछ बने हुए हैं। बट प्लीज इट्स नॉट दैट कोई ऐसी बीमारी नहीं है, हर घर में है, हर जगह है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इससे थोड़ा आगे आए। और सेकंड चीज एक और शेयर करना चाहूँगा, एंड यू नो कि स्टूडेंट के एग्जाम आने वाले हैं, तो इनकेस जैसे वी आर ट्राइंग कि जयपुर में हम लोग पर्सनल बुक प्रोवाइड कराएं। इनकेस अगर आपके शहर में कुछ बच्चे आते हैं और आपके पास सपोज करें कि रहने के लिए कोई जगह है, वहाँ पे आप बच्चों को अकोमोडेट कर सकते हैं, कन्वेंट अगर आप बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं, फूड अगर बच्चे रह रहे हैं वहाँ प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ जो भी आपका ग्रुप है, जो टीम है, आप एक सब लोग एक बार बैठे सोचे पॉइंट के ऊपर, और अगर ऐसा कुछ कर सकते हैं तो प्लीज आप लोग करें। थैंक यू सो मच। अमोक सिंह। Thank you very much, sir. Thank you very much, Anil Yadav sir, for your speech. Now, I would like to introduce our excellent speaker today, Mr. Ankit Samani. I would like to give a brief introduction and would like to share some of his achievements and the biographical life. So, before starting, Mr. Ankit Samani, he is a rank holder in CA examination. He is a practicing fellow chartered accountant, having multiple offices in Rajasthan. He is a regular faculty for teacher training program at Maharshi Dayanand University. He has been appointed as course reviewer of CA course curriculum by ICAI. He has been appointed as conducting career counseling program by ICAI. He also has been appointed as GST expert and coordinator for GST implementation in Ajmer district. He is also the past chairman of Kittangad branch of ICAI. He has been delivered almost 350 plus lectures across India, which includes cities like Mumbai, Delhi, Indore, Ahmedabad. That is brilliant, sir. His area of expertise is GST, income tax, Benami properties, and corporate laws. His other achievements are he is also a silver medal in CS, company secretary. He has been titled as Rajasthan 3 on occasion of Rajasthan Sthapna Divas. That is quite interesting, sir. I would like to know a brief about this after the session or this. And he has been delivered so many lectures in the different cities of the country all over the India. So with this note, I would like to welcome our expert speakers to share his expertise and share their knowledge with our candidates today. So very welcome to you, sir.
Mr. Ankit Somani. Now I would request Ankit Somani to take this and continue with the videos. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. So nice of you. आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, स्पेशली अनिल जी का, अभिषेक जी का, अमोक जी का, जयपुर ब्रांच ने सभी मेंबर्स का, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। कुछ 2 लाइनों से स्टार्ट करते हैं सर। खुशियाँ खूबियाँ इतनी तो नहीं, खुशियाँ और खूबियाँ इतनी तो नहीं कि किसी का दिल जीत सके, लेकिन कुछ पल ऐसे भी छोड़ जाएंगे जिन्हें भुला पाना आसान ना होगा। विद दिस आई वुड लाइक टू स्टार्ट माई सेशन। जब पहली बार अनिल सर का मेरे पास फोन आया तो उन्होंने कहा कि अंकित भाई आईटीसी के ऊपर कुछ बोलना है। उसके बाद हमें ऐसा पता लगा कि धीरे धीरे ये डेट्स एक्सटेंड होती गई। तो ये जो बुक्स क्लोजर की डेट है, क्योंकि ये भी अब एक्सटेंड हो गई है, तो कुछ स्पेशल एडजस्टमेंट्स उनको भी ऐड करने के लिए अनिल भाई ने मुझे कह दिया कि भाई अंकित भाई ये भी ऐड करना है, तो स्पेशली उन पर भी हम स्पेशल जो रखेंगे। कुछ एडजस्टमेंट 17-18 के 18-19 में कैसे करने हैं, जितना भी समय हो पाएगा, जितना भी समय परमिट करेगा, उनको भी हम जरूर डील करेंगे। जहां तक मेरा ऐसा समझना है, मेरा मानना है, तो आप यही मानेंगे ओवरऑल इवेंचुअली कि जीएसटी एक अपकमिंग लॉ है, अभी तो स्टिल इट इज इन नेसेंट स्टेज। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही आपको लगेगा कि ये लॉ धीरे धीरे सेटल हो रहा है। जैसे जैसे ये लॉ सेटल होता जाएगा वैसे वैसे कई सारी इंट्रिकेसीज, कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारे इश्यूज जो भी निकलते जा रहे हैं, इनके ऊपर नोटिसेस भी आने लग जाएंगे। ऑल्दो नोटिसेस वाला सेशन आज मेरा नहीं है, नोटिसेस वाले सेशन के लिए कल हम उज्जवल जी के साथ जरूर रहेंगे। फिर भी कुछ कुछ स्पेशल बातों का हम क्या क्या रिप्लाई कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसको भी टच करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली वो आईटीसी रिलेटेड। अगर अपन ओवरऑल सोचें तो मेजरली 3 तरह के नोटिसेस आपके पास आएंगे, 3 इश्यूज को लेकर आगे आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वुड बी डेफिनेटली एचएसएन कोड। सेकंड, क्या सप्लाई है, क्या सप्लाई में इंक्लूड होगा, क्या सप्लाई में एक्सक्लूड होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू बनेगा। और तीसरी चीज आपके पास जो इंपॉर्टेंट बनेगी, दैट विल बी इनपुट टैक्स क्रेडिट। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जहां भी कहीं आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो एंड में भी पूछ सकते हैं, शुरुआत में जैसे जैसे भी सेशन चलता जाएगा वैसे वैसे भी अपन कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको जब भी ऐसा कभी लगे तो यू कैन ऑलवेज रेज द हैंड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, क्यों इसकी नीड हुई, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। बेसिकली जैसे हम input means any goods other than capital goods used or intended to be used by a supplier in the course or furtherance of business। सेक्शन 2 क्लॉज 19 के अंदर कैपिटल गुड्स को इन्होंने अलग रखा। आप जरा गौर से देखें, 2 क्लॉज 59 के अंदर इनपुट के मतलब सारे गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स। इन लोगों ने प्रोबेबली लॉ फ्रेमर्स ने कैपिटल गुड्स को अलग से इसलिए रख रखा है क्योंकि कई जगह आप ऐसे देखेंगे कि कैपिटल गुड्स के इनपुट लेने में या फिर एट द टाइम ऑफ रिमूवल ऑफ कैपिटल गुड्स, या ऐसा अपन कहें कि एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स, उस समय आपके पास जो आईटीसी लगेगा। और अगर वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों तरह के अगर काम में ले रहा है तो रूल 43 विल आल्सो कम इनटू पिक्चर। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपोर्ट वाले केसेस में रिफंड को लेकर भी इश्यूज हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट और कैपिटल गुड्स को अलग अलग बाइफिकेट करना जरूरी था। सिमिलर इज द पोजीशन फॉर इनपुट सर्विसेज, मतलब कोई भी ऐसी सर्विस विच इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड बाय अ सप्लायर इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात, जो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो जरा देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा। हमें क्या गुड्स हैं, क्या इनपुट गुड्स हैं, क्या कैपिटल गुड्स हैं, क्या इनपुट सर्विसेज हैं, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ों का रिफंड के केस में आईटीसी में बेनिफिट नहीं मिल पाता है। ओके, अब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन है जिसके ऊपर पूरा का पूरा आज का सेशन फ्रेम्ड है मेजॉरिटी वाइज, वो सेक्शन 2 क्लॉज 63 है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट। और शॉर्टेस्ट डेफिनेशन यही है, इट मींस द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। इसका मतलब ये हो गया कि इस इनपुट टैक्स क्रेडिट की डेफिनेशन को समझने के लिए पहले हमें इनपुट टैक्स समझना पड़ेगा, दैट इज सेक्शन 2 क्लॉज 62। यहां से थोड़ा सा कंसंट्रेशन से आप सुनिएगा। इनपुट टैक्स,
इन रिलेशन टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। इसका मतलब ये हो गया इनपुट टैक्स की कहानी केवल और केवल हम सर प्लीज अगर कोई अनम्यूट हो तो म्यूट कर लें। Input tax in relation to a registered person means the central tax, state tax, integrated tax or union territory tax charged on any supply of goods or services or both made to him and includes। समझिएगा कई सारी बातें इसमें बहुत बारीकी से कही गई। पहली इंपॉर्टेंट बात, this reference of input tax is in relation to only and only for registered person। जैसे जैसे लॉ प्रोग्रेस होता गया वैसे वैसे धीरे धीरे बात समझ में आती गई कि रजिस्टर्ड पर्सन का भी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन कंपोजिशन डीलर है। सिर्फ यही नहीं, ये रजिस्टर्ड पर्सन भी हम केवल उन्हीं रजिस्टर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं जो कुछ तो टैक्सेबल सप्लाई कर ही रहे हों। अगर कोई ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हों जो केवल और केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई करते हों, उनके भी किसी काम का नहीं है। या फिर ये ऐसे रजिस्टर्ड पर्सन हों जिनकी 100% सर्विसेज अंडर आरसीएम कवर्ड हो, वो भी यहाँ पर कवर नहीं होंगे क्योंकि उनको भी इन एनी केस आईटीसी मिलेगा ही नहीं। राइट, तो ऐसे कुछ कुछ इश्यूज हैं। और अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड और है, चार्ज। सभी तरह के टैक्स का नाम हो गया और इसमें नाम आ गया चार्ज। इसमें जो एक वर्ड आ गया वो आ गया चार्ज ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड टू हिम एंड इंक्लूड्स। ये वर्ड चार्ज की क्या सिग्निफिकेंस है ये अपन देखेंगे। ओके, टू प्रोसीड फर्दर, क्या क्या इसमें इंक्लूड होगा? आईजीएसटी जो इंपोर्ट पर लगा, जो हमने आरसीएम में चुकाया, और क्लॉज बी सी डी ई आप जैसे ही देख रहे हैं वो सारे के सारे अगेन आरसीएम को ही डील कर रहे हैं। सेक्शन 934 ऑफ सीजीएसटी, देन सेक्शन 534 ऑफ आईजीएसटी, एंड देन अगेन सेक्शन 9 ऑफ स्टेट जीएसटी एक्ट, जो भी जैसा भी, और यूटीजीएसटी का सेक्शन 734। राइट, यहां पर हर जगह वर्ड पेएबल है। क्या सिग्निफिकेंस है इस बात की, क्या इंपॉर्टेंट बात ये मैटर करती है? जरा देखिए, मेरे हाथ में से फॉर एग्जांपल ये एक मोबाइल है, तो इस मोबाइल के अंदर अगर जीएसटी रेट 18% है, समझिएगा, अगर मोबाइल के ऊपर जीएसटी रेट 18% है और आपका सप्लायर अगर इसके ऊपर 28% चार्ज कर ले, अगर आपका सप्लायर इसके ऊपर 28% चार्ज कर ले, तो भी आपको इसका इनपुट जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर जो आप डेफिनेशन के अंदर फर्स्ट लाइन में देख रहे हैं वो लिख रखा है आपको सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी चार्ज, जितना भी टैक्स चार्ज हुआ। लेकिन जहां पर भी बात आरसीएम की आ रही है वहां पर हर बार ये बात बोल रहे हैं पेएबल। सी फॉर एग्जांपल, जीटीए के केस के अंदर आपको आरसीएम में 5% जमा कराना था, अगर आपने गलती से 12% या 18% जमा करा दिया तो देयर मे बी सम इशू एज फार एज आईटीसी इज टू बी टेकन इज कंसिडर्ड। राइट, आप समझ रहे हैं, वहां पर लिखा टैक्स पेएबल, क्योंकि सामने वाला सप्लायर तो कभी भी आपको अपने इनवॉइस के अंदर टैक्स चार्ज करके देता ही नहीं। तो अगर आपने टैक्स ज्यादा चार्ज कर लिया देन देयर विल बी सम इशू इन अवेलिंग द आईटीसी। ये वो पॉइंट्स हैं जो इवेंचुअली 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद तक आपके पास तकलीफ में लाते रहेंगे। डिपार्टमेंट इनके नोटिस तब देना स्टार्ट करेगा। और एक स्पेशल लाइन इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में ही, इनपुट टैक्स की डेफिनेशन में ही जो दे रखी है वो ये, इट डज नॉट इंक्लूड द टैक्स पेड अंडर कंपोजिशन लीव। जो भी कोई कंपोजिशन डीलर है ना तो वो आईटीसी ले पाएगा, ना ही वो सामने वाले को आईटीसी पास ऑन कर पाएगा। राइट, ओके, टू प्रोसीड फर्दर, अब हम स्टार्ट करें। जो आपके पास बेस सेक्शन है, जो आपके पास सबसे ज्यादा बेस सेक्शन है वो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1। क्या कहता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 1? अगर हम गौर से देखें तो सुनिएगा ध्यान से, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, गौर से सुनिएगा, बहुत सारे वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन shall subject to such conditions and restrictions as may be prescribed, जो भी कोई conditions और restrictions हैं जो as may be prescribed है। अब जब भी आप ये बात पढ़ें as may be prescribed, तो आप हमेशा ये मान लीजिएगा prescribed as per rules and in the manner specified in section 49। समझिए ध्यान से, यहाँ पर रेफरेंस केवल और केवल सेक्शन 49 का है, मतलब कि यहाँ पर रेफरेंस आपके पास सेक्शन 49A 49B का नहीं है। सरप्राइजिंगली बट ट्रू, ये लॉ में अभी तक सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अमेंड होकर नोटिफाई नहीं हो पाया है। राइट, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49, केवल 49 है, ठीक है। बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज्ड ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम। कई सारे वर्ड्स आ गए इसमें। एक वर्ड इसमें आएगा एंटाइटलमेंट। क्या है एंटाइटलमेंट का मतलब, देखते हैं। दूसरा वर्ड इसमें आया टेक। अब ये टेक, अवेलमेंट, एंटाइटलमेंट, यूटिलाइजेशन, ये सब भी अलग अलग मीनिंग के वर्ड्स हैं।
देखते हैं अपन आगे कंसिडर करते जाते हैं। सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ टू हिम विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, समझिए, विच आर यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड। जब भी कभी भी आपके पास इनपुट की, कैपिटल गुड्स की, इनपुट सर्विस की डेफिनेशन थी, वहां पर भी इस तरह के वर्ड से यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। समझिए आप, इन वर्ड्स का मतलब यहां पर ये हो गया यूज और इंटेंडेड टू बी यूज का। सपोज मैंने कोई गुड्स फरवरी 2020 में खरीद लिए, बीट फॉर ट्रेडिंग और बीट फॉर मैन्युफैक्चरिंग, तो जरूरी नहीं है कि मैंने उस गुड्स के ऊपर प्रोसेस्ड आउटपुट या इवन ट्रेडेड गुड्स हैं तो एज इट इज मैंने 31 मार्च के पहले पहले उनको सेल ऑफ भी कर दिया हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मीनिंग देयर बाय इस साल का आईटीसी मैं अगले साल में भी यूज कर पाऊंगा, यूटिलाइज कर पाऊंगा, राइट, which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business, in the course or furtherance of his business। अब क्या चीज in the course or furtherance of business मानी जाएगी? This will be in itself a huge complicated issue, और probably अगर अनिल सर मुझे इजाजत देते हैं तो शायद in the course or furtherance of business के ऊपर ही मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ। चलिए प्रोसीड करता हूँ आगे, शायद आज टाइम परमिट नहीं करेगा इस बात को लेकर। एंड द सेड अमाउंट शैल बी क्रेडिटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ सच पर्सन। ये बात अब शायद सभी लोगों को आगे वाली बात तो क्लियर है कि आपके क्रेडिट लेजर में जाएगा वो। अगर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो क्या उसको आईटीसी मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। वो रजिस्टर्ड तो हुआ लेकिन उसका सारा का सारा सप्लाई जो है, पूरी सप्लाई जो उसकी है वो एग्जेम्प्टेड गुड्स को लेकर है, तो क्या उसको आईटीसी मिल पाएगा? नहीं दोस्तों, तो भी उसको आईटीसी नहीं मिल पाएगा। अगेन सिमिलरली अगर उसकी 100% अंडर आरसीएम सामने वाला रिसिपिएंट ही टैक्स भरे तो क्या उसको आईटीसी मिलेगा? सर तो भी नहीं मिल पाएगा। समझ रहे? कंडीशंस और रेस्ट्रिक्शंस जो इंपोज की गई रूल्स के अकॉर्डिंग या इवन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, अभी अपन देखेंगे वही मैनर, इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। अब ये मैनर के लिए हम सभी लोग कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर बात केवल सेक्शन 49 की है, 49A 49B की बात नहीं कर रहे हैं। मीनिंग अगर मैं रफली बात करूँ आईजीएसटी का यूज आप आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी में कर सकते हैं। सीजीएसटी का यूज आप यूटिलाइजेशन आप सीजीएसटी में, देन आईजीएसटी में कर सकते हैं, एंड देन एसजीएसटी का आप एसजीएसटी एंड देन आईजीएसटी में कर सकते हैं, राइट। तो आई थिंक इट वाज वेरी 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 कंफर्टेबल। सिर्फ एक बारीक सी बात, इस बात को लेकर भी हम सभी लोग अभ्यस्त हैं, राइट, कि एक स्टेट का एसजीएसटी दूसरे स्टेट के एसजीएसटी को भी सेट ऑफ करने के काम में नहीं आएगा। सर ये तो पता ही था अंकित सर, ये तो पता ही था हमें। सीजीएसटी का क्या होगा सर? क्या महाराष्ट्र का सीजीएसटी राजस्थान के सीजीएसटी को सेट ऑफ करने के, एडजस्ट करने के काम में आ सकता है? सर लॉ में इसको रोकने की कोई बात नहीं थी, लेकिन टिल डेट अभी तक ये अलाउ नहीं हो रहा है। ऑल्दो पीपल हैव गॉन फॉर अपील अगेंस्ट दिस प्रोविजन, और इस बात को लेकर लोगों ने हाई कोर्ट में रिट लगा दी है कि सीजीएसटी तो सीजीएसटी ही है, वो क्यों आपने स्टेट के दायरे में ब्लॉक कर रखा है, राइट। ओके और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड जो इनमें आए सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 में, वो आया एंटाइटलमेंट, अवेलमेंट, यूटिलाइजेशन और टेकिंग। अब इसकी चर्चा अगर अपन डिटेल में करें, समझिएगा। एंटाइटलमेंट, आपके पास ये एक एंटाइटलमेंट है, इस बात का मतलब ये हो गया कि आप इस आईटीसी को ले सकते हैं, आप इस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। समझ रहे हैं? आप इस आईटीसी को अवेल कर सकते हैं। जब आप एक्चुअल अवेल करते हैं दैट इज नोन एज अवेलमेंट। अब ये अवेलमेंट का या एक्चुअल अवेल करने का मतलब क्या हुआ? सर एक्चुअल अवेल करने का मतलब, सुनिएगा, एक्चुअल अवेल करने का मतलब हुआ अवेलमेंट इन 3B, जैसे ही आप उसे 3B में अवेल करते हैं। यूटिलाइजेशन, कैसे आप उसको, किस मैनर में आप उसको यूज करते हैं सेक्शन 49 को यूज करते हुए। एंड देन टेकिंग, दिस वर्ड टेकिंग इज रियली वेरी वेरी डिफिकल्ट, एंड बिलीव मी डिपार्टमेंट इज इशूइंग नोटिसेस ऑन अकाउंट ऑफ दिस। समझ रहे हैं? हमारे जो रिप्लाई बनेंगे वो इस टेकिंग वर्ड की वजह से बनेंगे। टेकिंग वर्ड को अगर अपन एक्साइज लॉ के हिसाब से इंटरप्रेट करें तो टेकिंग वर्ड का मतलब था हमेशा ही टेकिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समझ पा रहे हैं आप? टेकिंग वर्ड का मतलब था टेकिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो इस कारण से यहां पर जो बहुत ही खूबसूरत बात बनती है वो एक अवेलमेंट, अवेलमेंट इन 3B, और टेकिंग, टेकिंग का मतलब टेकिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इन दोनों में बहुत फर्क हो सकता है। ये मैं आपको बहुत बढ़िया एक तरीका बता रहा हूँ सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के नोटिस को रिस्पॉन्स करने का। खैर पहले अपन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 देखें। ब्यूटीफुल पॉइंट इज सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 स्टार्ट्स विद नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज।
मैं पढ़ता हूँ, notwithstanding anything contained in this section, इसका मतलब ये हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 will prevail over all other subsections, right? Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax. आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी आपके पास रजिस्टर्ड पर्सन है, समझिए, he shall not be entitled to credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless ये 4 कंडीशन फुलफिल हो। पहला, he is in possession of tax invoice और डेबिट नोट, जो एक्चुअल टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट है वो। तो क्या ये टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट जो है हमें फिजिकल ही चाहिए? क्या ये प्रॉपर्ली साइंड होने चाहिए? क्या ये सॉफ्ट कॉपी भी चलेंगे? कई सारे इश्यूज आपके दिमाग में होंगे ही, राइट? कम से कम आप अपने क्लाइंट्स को भी जरूर गाइड कीजिए, सर फिजिकल पोजीशन होना चाहिए, वो साइंड होने चाहिए, राइट? अगर वो सॉफ्ट कॉपी के अंदर है देन इट मस्ट बी डिजिटली साइंड। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आईटीसी मिल जाए सिर्फ व्हाट्सएप की इमेज से। समझिए आप कि सामने वाली पार्टी ने बिल बनाया, इनवॉइसिंग करी, साइन कर दी हाथ से और उसकी इमेज भेज दी व्हाट्सएप पर, या आपके पास मेल पर इमेज आ रखी है, उसका आईटीसी नहीं मिल पाएगा, ये समझिएगा। मतलब अगर आपको सॉफ्ट कॉपी के अंदर इनवॉइस चाहिए देन इट मस्ट बी डिजिटली साइंड, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, he has received the goods or services or both. अब now what do you mean by the word received? See, taking all its natural meaning, received का यहाँ मतलब है जब वो मेरे पोजेशन में आ जाए, जब वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। अब ये मेरे कंट्रोल के अंदर आना और मेरे फिजिकल पोजेशन में आने में बहुत फर्क हो सकता है, राइट? फिजिकल पोजीशन यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि वो मेरे कंट्रोल में आ जाए। मतलब मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ बिल टू शिप टू की भी। मतलब मैंने गुड्स यहाँ से उठाए, उसको बोला कि कहीं और डिलीवर कर देना, मेरे तक डिलीवर नहीं भी हुए तो भी इट विल बी डीम्ड कि ये गुड्स मुझे डिलीवर हो चुके हैं। समझिए, ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? मैं और आगे बढ़ता हूँ, इसमें आप समझने की कोशिश करना। जो एक और स्पेशल बात है, बढ़िया बात है, वो जरा समझिए आप। रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज को हम इस कोविड रिजीम में अगर लाएं, पर्टिकुलरली फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, तो अपन क्या देखेंगे? सुनिए, सपोज 18th ऑफ मार्च को मेरे क्लाइंट के गुड्स डिस्पैच हो गए थे क्लाइंट के सप्लायर से, लेकिन क्लाइंट के पास 31 मार्च तक नहीं मिले। क्यों? क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था सर। अब क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था, समझिएगा, अब क्योंकि बीच में लॉकडाउन हो गया था और ये गुड्स जब नहीं मिल पाए हैं, ये गुड्स जब नहीं मिल पाए हैं, देन यू आर इनएलिजिबल टू टेक द क्रेडिट। तो कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो आपके पास फैक्ट्री में जब गुड्स आएंगे तो जीआरसीपीटी गुड्स रिसीट बनाते हैं। उस केसेस के अंदर अगर वो जीआरसीपीटी गुड्स रिसीट जो है अगर अप्रैल में है, मई में है, तो आपको उसका इनपुट नहीं मिल पाएगा मार्च तक, राइट? अगले साल जरूर मिल जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, तो एक जो तीसरा क्लॉज है वो ये कि मेरे सप्लायर ने इसके ऊपर टैक्स जरूर चुका दिया हो, भले वो कैश से या आईटीसी से। और चौथी इंपॉर्टेंट बात, मैंने अपने रिटर्न में जरूर इसको फर्निश कर दिया हो, मतलब मैंने इसका आईटीसी जरूर ले लिया हो सेक्शन 39 के अकॉर्डिंग जो रिटर्न है उसमें। अब जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है वो ये कि ये जो क्लॉज सी है, मेरे सप्लायर ने इसके ऊपर टैक्स जमा करा दिया था, आज की डेट में इसका कोई मशीनरी प्रोविजन नहीं है अंडर द एग्जिस्टिंग रिटर्न फॉर्मेट। मीनिंग देयर बाय, जैसे ही हम जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 की बात करते हैं, उससे किसी भी हालत में ये प्रूव नहीं हो सकता कि आपके सप्लायर ने इसके ऊपर टैक्स जमा कराया है या नहीं। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल बात है, ये समझिएगा आप लोग, राइट? और हमारे पास अपने रिस्पॉन्स का एक ये पॉइंट भी हमेशा बनेगा, समझिए, नथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड आउट ऑफ which is impossible basically। आप समझिए, क्लॉज सी अभी तक एनफोर्स हो ही नहीं पाया है जब तक पुराने रिटर्न फॉर्मेट होगा। मतलब जैसे ही नए रिटर्न फॉर्मेट आएंगे सेक्शन 43A के अकॉर्डिंग, जब भी वो इंप्लीमेंट होगा तब जरूर ये चीज इंप्लीमेंट हो पाएगी, उसके बिना नहीं। तो सर अभी तक क्या करें? अमुक भाई ने मुझे धीरे से मैसेज भेजा कि सर तब तक क्या करें इस पॉइंट का, सी पॉइंट का, कि हमारे सप्लायर ने इसका टैक्स जमा कराया या नहीं कराया, तब तक क्या कर सकते हैं? सर प्रैक्टिकल लाइफ के हिसाब से अगर आपका ये आईटीसी 2A में नहीं दिख रहा है, सुनिएगा, अगर 2A में नहीं दिख रहा है तो फिर आप कम से कम अपने पास ये जरूर कर लें कि अपने सप्लायर को बोलें वो उसके लेटर हेड के ऊपर, आई रिपीट, वो उसके लेटर हेड के ऊपर ये लिखकर जरूर दे दे हमें
क्या लिख कर देगा वो उसके लेटर हेड पर हमें कि उसमें ये इनवॉइस उसके जीएसटीआर 1 में चढ़ने से रह गए हैं, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो भी इसका टैक्स एलिमेंट था वो इसने जरूर जमा करा दिया है, राइट। मैं आगे प्रोसीड करता हूं। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का प्रोविजो, फर्स्ट प्रोविजो वो क्या कहता है, अगर आपके गुड्स लॉट्स में या इंस्टॉलमेंट्स में आए हैं तो रजिस्टर्ड पर्सन को क्या उसका क्रेडिट मिल पाएगा? सर बिल्कुल मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही वो लास्ट ट्रॉली, लास्ट ट्रक, लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगा, केवल उसका क्रेडिट उसको तब मिल पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस लास्ट ट्रॉली, लास्ट ट्रक में ही पाया जाएगा। ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये सेकेंड प्रोविजो जो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का है, जिसने भी बहुत ज्यादा तंग कर रखा है, और हम स्मॉल एंड मीडियम प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एसएमपीज जिसको बोला करते हैं, वो हम इसको ध्यान ही नहीं दे पाते। वो क्या, जरा देखिए, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर अ रिसिपिएंट fails to pay, ध्यान समझिएगा वर्ड, fails to pay to the supplier of goods or services or both other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of 180 days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to ITC availed by the recipient shall be added to his output tax liability। समझ रहे हैं आप सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपने 180 दिन में पेमेंट नहीं करा है तो आपको इस अमाउंट को अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के अंदर ऐड करना है along with the interest thereon, और किस तरीके से, in such manner as may be prescribed। अब ये prescribed ने रूल्स में कर रखा है, रूल 37, राइट। ओके फाइन। तो सेक्शन तो ये बोलता है इट शुड बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी, इट शुड बी एडेड टू योर आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। अगर आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं करा है तो सुनिएगा ध्यान से, इसमें कई सारी बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, अगर ये आप अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ते हैं, अगर ये आप अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में जोड़ते हैं, देन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एज पर योर 3B will definitely disagree on this front and hence it would result in reconciliation, जो आपके पास reconciliation statement 9C में आएगा, राइट। तो ये तो पेंडिंग रिकंसिलिंग आइटम जिंदगी भर के लिए बन जाएगा, ये कभी रिकंसाइल हो ही नहीं सकता। दूसरी इंपॉर्टेंट, यहां पर जो भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करा, आपको इंटरेस्ट के साथ करना है, राइट। जो भी आपने इंटरेस्ट का पेमेंट करा वो सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग अब ये इंटरेस्ट का पेमेंट आपको 18% पे करना है या 24% पे करना है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों के मन में विचार रहेगा, क्योंकि ये आईटीसी रिवर्सल की तरह बात हो रही है, पर माइंड यू दिस इज नॉट अ केस ऑफ आईटीसी रिवर्सल, राइट। क्योंकि इसने क्लियर बोल दिया कि आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आपको ऐड करना है। अगर ये आईटीसी रिवर्सल है भी तो आप इसे अगले महीने के आईटीसी में से कम करके मत शो कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट आपने पे करा, इस इंटरेस्ट का आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब भी आप इस अमाउंट को लेटर ऑन पे ऑफ करते हैं अपने सप्लायर को, क्या तब उसका आईटीसी मिल जाएगा? सर इंटरेस्ट का तो तब भी नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ टैक्स अमाउंट का तब मिल जाएगा। ये जरूर एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। अब इसके अंदर अगर आपने पेमेंट अधूरा किया हो तो फिर सर क्लियर है, उस केस में आपको प्रोपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा। इस बात का भी जरूर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब एक स्पेशल बात जो इस सेकंड प्रोविजन से निकल कर आती है, सुनिएगा, प्रोवाइडेड फर्दर वेयर अ रिसिपिएंट फेल्स टू पे। अपनी जो लड़ाई है एज प्रोफेशनल, जो डिपार्टमेंट के साथ जो अपनी लड़ाई है या जो अपना डिस्कशन का पॉइंट है, वो है फेल्स टू पे। अब ये फेल्स टू पे वर्ड्स का एग्जैक्ट मतलब क्या है? देखिए, फेल्स टू पे वर्ड का एग्जैक्ट मतलब यहां पर ये हो गया, समझिएगा, रिसिपिएंट और सप्लायर दो इंडिपेंडेंट पार्टीज हैं। मैंने सामने वाले से गुड्स खरीदे और मैंने उसको ये बोलकर खरीदे कि मैं 10 महीने बाद पेमेंट करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं 10 महीने बाद पेमेंट करूंगा। अब डेफिनेटली वो तो 180 डेज के बाद ही पेमेंट होगा। तो ये तो दो इंडिपेंडेंट पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट। तो क्या उस केस के अंदर भी 180 डेज वाला क्लॉज लगेगा? क्योंकि फेल्स टू पे तो तब होगा जब वो 10 महीने बाद पेमेंट ना करे। इस बात को लेकर जरूर कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन या कोई ना कोई हाई कोर्ट कोई डिसीजन देगी, तब उस बारे में आएगी, बात जरूर आएगी इन टाइम्स टू कम। प्रोबेबली इट मे टेक अनदर 2-3 years डाउन द लाइन, राइट।
अगर अपन सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 की बात करें, 3 की बहुत बोल रहा हूँ, 3 बहुत बेसिक सा है, मैंने उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया। 3 बहुत ही बेसिक है। वो क्या है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3? समझिए, जो भी आईटीसी आपके कैपिटल गुड्स को बिलोंग करता है तो उसका आईटीसी क्योंकि आप ले चुके हैं तो कैपिटल गुड्स के साथ में कैपिटलाइज नहीं होगा, और अगर आपने कैपिटलाइज कर लिया तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आई थिंक दिस वाज एम्पली क्लियर, बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल सी पोजीशन थी। ओके, देन आगे सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। सबसे पहली बात तो अगर आपके पास सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का कोई नोटिस आता है तो आप प्लीज उसका रिप्लाई जरूर दें, इसका अपोजिशन आप जरूर करें। करेक्ट, आप इसको रिप्लाई देना जरूरी ही समझें। ओके, a taxable person shall not be entitled to take ITC। हर एक वर्ड को अपन अलग अलग तोड़ के भी पढ़ेंगे, एक बार आप समझिए पूरा। shall not be entitled to take ITC in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or डेबिट नोट परटेन्स, ये बीच वाले वर्ड्स ऑलरेडी डिलीट हो चुके हैं एक्ट से भी, और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न व्हिच एवर इज अर्लियर। तो डेफिनेट सी बात है अगले साल का सितंबर ही हर बार जल्दी आ रहा है, राइट। 17-18 के एनुअल रिटर्न तो हमने इस फरवरी के अंदर भरी, 18-19 के एनुअल रिटर्न हम कुछ कई सारे लोग शायद हड़बड़ी में, शायद जल्दीबाजी में 30 सितंबर को गलत भर चुके हैं, राइट। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज आपके पास आएंगे भी। एनीवेज अपन यही मान लेते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस कि आपके पास सितंबर, अगले साल की सितंबर की जो रिटर्न है वही जल्दी आएगी, राइट। अब इसमें कई सारी बातें हैं, ये जो स्ट्राइक्ड ऑफ वाले वर्ड्स हैं ये फाइनेंस बिल 2020 के थ्रू अमेंड हो चुके हैं ऑलरेडी। एंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 लास्ट डेट जो थी इसके क्रेडिट लेने की वो 25 अक्टूबर हो गई, क्योंकि सितंबर के रिटर्न की वो हो गई थी। ऑल्दो ये लेटर ऑन बाद में 31 मार्च तक बढ़ाई गई थी, सब्जेक्ट टू रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर। इस रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर में क्या था, मैं थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सेकेंड रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर आया था 31 दिसंबर 2019 को, वो 31 दिसंबर 2018 को, सॉरी। क्या कहा था उसमें ये कहा था कि अगर आपका कोई आईटीसी 2A में दिख रहा है जब, तो आप उसको 31 मार्च तक भी ले सकते हैं। तो अपन ये रोल ओवर कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट चला लेंगे, राइट। मतलब जो नहीं दिख रहा है वो हमने सितंबर तक लिया, जो दिख रहा है वो तो हम मार्च तक भी ले सकते हैं, राइट। ओके, फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 लास्ट डेट वाज 20 अक्टूबर 2019 ओनली, और 19-20 की तो सितंबर की रिटर्न की लास्ट डेट अभी तक टिल नाउ 20 अक्टूबर 2020 है। ओके, तो जो कुछ स्पेशल बातें हैं इसमें वो जरा देखिए। यहाँ पर जो वर्ड्स मेंशन्ड हैं वो मेंशन्ड है आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट। यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा डेट ऑफ इनवॉइस, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गुड्स कब रिसीव हुए, यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखा कि आपको इनवॉइस कब मिला, कई सारी चीजें हैं, राइट। तो क्या लिखा, आईटीसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट, दैट मींस द डेट ऑफ इनवॉइस और नोट should be considered regardless of date of transaction। कब ट्रांजैक्शन हुआ वो रेलेवेंट नहीं। तो कई सारे लोग इसको टैक्स प्लानिंग के तौर पर किस तरीके से एडजस्ट कर रहे हैं। पर मान लीजिए आपका रेसिपिएंट इसका क्रेडिट नहीं ले पाया तो आपको उसकी अल्टीमेटली भी हेल्प करनी पड़ेगी फॉर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस या फॉर बिजनेस फ्लेक्सिबिलिटी, फॉर बिजनेस एक्सटेंशन, कुछ भी आप बोल लें, आपके कस्टमर को तो नुकसान नहीं ही होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग इसकी डेट ऑफ इनवॉइस चेंज कर रहे हैं, एंड यस डेफिनेटली पेनल्टी अंडर सेक्शन 31(3) वुड बी अट्रैक्टेड फॉर दिस। तो वो पेनल्टी वाला अमाउंट हम देने को तैयार हो जाएंगे, ऑल्दो अगर हम उसकी डेट ऑफ इनवॉइस चेंज कर पाए तो। ये कई सारे लोग कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आईटीसी मेरा सब्सटेंटिव राइट है, आईटीसी मेरा एसेट है, तो ये राइट तो गवर्नमेंट मेरे से ले ही नहीं सकती, ये भी हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, 3B तो खुद ही रिटर्न नहीं थी 9 अक्टूबर 2019 को, तो मैं कौन सी रिटर्न भरने की बात करूं। उसके बाद जरूर एक नोटिफिकेशन नंबर 49 आया 9 अक्टूबर को, जिसने रेट्रोस्पेक्टिवली बोल दिया कि 3B इज अ रिटर्न ओवरराइडिंग द डिसीजन ऑफ गुजरात हाई कोर्ट आप एंड कंपनी। देन जीएसटीआर 2 की बात, जो लॉ का इंटेंशन देखते हैं ना हम लोग, वो इस एंगल से देखते हैं कि जीएसटीआर 2 तो दोबारा आएगा ही, क्योंकि हर बार उसके डेफरमेंट की बात है, हर बार उसके पोस्टपोनमेंट की बात है, कभी भी उसको हटाने की बात नहीं है। और अगर जीएसटीआर 2 की डेट लगातार बढ़ती है तो मेरे आईटीसी लेने की एलिजिबिलिटी की डेट भी लगातार बढ़ रही है। ओके, अब यहां पर जो वर्ड्स लिखे हैं अगेन, टेक आईटीसी, ध्यान से समझिए, टेक आईटीसी
वो क्या है कैसे है, तो उसमें कुछ कुछ वर्ड्स और समझने लायक है। पहली बात तो मैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का भी रेफरेंस यहाँ पर वापस लाना चाहूंगा, क्योंकि वो नॉट विथस्टैंडिंग से स्टार्ट होता है, वो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है अपने आप में ही, और ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये हो गया कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 विल ओवरराइड और इट विल ओवररूल सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। 4 कंडीशन पूरी होनी चाहिए जो हमने अभी पढ़ी। 4 कंडीशन कौन कौन सी? पहली बात मेरे पास इनवॉइस आ जाए, दूसरी बात मेरे पास गुड्स आ जाए, तीसरी बात मेरा सप्लायर इसके ऊपर टैक्स जमा करा दे, और चौथी बात मैं इसका आईटीसी ले लूं। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की, वो है टेक आईटीसी। समझिए वो क्या है? टेक आईटीसी। टेक आईटीसी का मतलब क्या है? टेक आईटीसी से हम क्या रेफरेंस निकालें, टेक आईटीसी को हम कैसे अंडरस्टैंड करें? समझिए 4 वर्ड्स हैं, एलिजिबिलिटी, एंटाइटलमेंट, अवेलमेंट और टेकिंग। इन वर्ड्स को लाइट नहीं लेना, आपके पास ये 4 वर्ड्स बहुत 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 एंड तक काम आते रहेंगे, मतलब अगले 5-10 साल की कहानी है ये। एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी डिफाइन होगी वो 4 कंडीशन पूरी होने से। एंटाइटलमेंट डिफाइन होगा, आप एंटाइटल्ड है कि नहीं, वो एलिजिबिलिटी का ही पॉइंट है। अवेलमेंट वर्ड की जहां तक बात है, अवेलमेंट वो 3B से आया। जहां कहीं भी अवेलमेंट की बात है, आईटीसी अवेलमेंट, वो जीएसटीआर 3B से आया, विच इज नाउ सो कॉल्ड रिटर्न। राइट, हम आज चलो मान लेते हैं हम कि वो रिटर्न है, हालांकि स्टार्टिंग में गवर्नमेंट उसको सिर्फ बोल रहा हूं मैं, जुलाई एंड अगस्त 2017 सिर्फ 2 महीनों के लिए लाई थी। राइट, और अब ये ऑलमोस्ट ऐसा सर्टेन सा होता हुआ दिख रहा है कि कम से कम भी मार्च तक तो रहेगी ही। राइट, तो शायद 4 साल के आसपास तक तो आपके पास रह ही जाएंगे 3B रिटर्न्स जो है। ठीक है, तो अवेलमेंट की जहां तक बारी आएगी, वो हमेशा अवेलमेंट इन 3B को लेकर आएगा। इस चीज का रेफरेंस आप कई जगह देख सकते हैं, इनफैक्ट आप नोटिफिकेशन नंबर 74 में देख सकते हैं, आप कहीं भी किसी भी रूल का रेफरेंस देखेंगे उसके अंदर अवेलमेंट इन 3B आपको मिल जाएगा। आप एनुअल रिटर्न की बारी भी देख सकते हैं, एनुअल रिटर्न के अंदर टेबल 6 का हेडिंग भी यही है। राइट, तो आईटीसी अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर, उसमें बार बार लोगों ने हाईलाइट करा 3B, आईटीसी अवेल्ड इन 3B। इनफैक्ट जो उसकी क्लैरिफिकेशन आई थी, जो उनके क्लैरिफिकेटरी नोट्स आए थे, उसमें भी हर बार अवेलमेंट का मतलब अवेलमेंट इन 3B की बात होती। और जहां तक बात टेकिंग की है, वो एक्साइज लॉ के अकॉर्डिंग टेकिंग एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होती है, और मैं ऐसा हमेशा बोल दूंगा कि ये तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ले ही ली। सर पिछले साल का मैं कैसे शो करूंगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि इन केसेस तो हो सकता है इनकम टैक्स ऑडिट भी हो गई हो, वो कैसे शो होगा सर? देखिए सर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है, अगर आप कहीं नोट कर रहे हो तो उसे जरूर लिखिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 अगर आपने किसी टाइम पर पढ़ा था, दोबारा रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जरूर उसे दोबारा पढ़िए, बहुत काम का है। आप लिखिए कहीं सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। ये इतना बड़ा नाम है उसका, AS5 का नाम है, आप सिर्फ AS5 लिख लीजिए। और उसमें एक पैरा 4 है, पैरा 4 के अंदर प्रायर पीरियड आइटम्स को डिफाइन कर रखा है। समझिए, पैरा 4 में प्रायर पीरियड आइटम्स को डिफाइन कर रखा है, AS5 में पैरा 4 में प्रायर पीरियड आइटम्स को डिफाइन कर रखा है। राइट, प्रायर पीरियड आइटम्स का मतलब क्या है अगर अपन ब्रॉडली सोचें तो? देखिए, दीज आर आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंसेस, इनकम और एक्सपेंसेस का पार्ट है वो। राइट, और ये ऐसा है विच हैज अकर्ड ड्यू टू एरर और ओमिशन, जो एरर या ओमिशन की वजह से हुआ, तो ये इसमें दूसरी बात है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी। अब डेफिनेट सी बात है, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया, अगर आपने इसका आईटीसी नहीं लिया, मतलब ये तो साथ में एक्सपेंस आउट हो गया होगा। राइट, ये तो साथ में आपके पास एक्सपेंस आउट हो गया होगा, दिस इज वेरी वेरी क्लियर। अब अगर ये एक्सपेंस आउट हो गया होगा, अब अगर ये साथ में आपके पास एक्सपेंस आउट हो गया होगा, तो अपने आप ही आपने इसका एक्सपेंडिचर में डालकर, आपने इसको एक्सपेंडिचर में डालकर अपना प्रॉफिट लॉस इंपैक्ट कर दिया होगा। क्योंकि इस कारण से आपका प्रॉफिट और लॉस इंपैक्ट हो गया, तो ये आइटम ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर कहलाएगा। राइट, और अब आपके पास ये प्रायर पीरियड की डेफिनेशन कवर हो जाएगा। खैर, एक बार वापस लौटाएं एक बार वापस AS5 के पैरा 4 के अकॉर्डिंग एक बार प्रायर पीरियड आइटम आप जरूर पढ़िएगा, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, AS5 के ही पैरा 15 के अकॉर्डिंग आपको प्रायर पीरियड आइटम को सेपरेटली शो करना है, सो दैट इट्स इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड बाय द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, आपको प्रायर पीरियड आइटम को सेपरेटली शो करना है। से फॉर एग्जांपल, मैं सिंपल अपन एग्जांपल की बात करें, सपोज कोई बैंक चार्जेस थे,
उन बैंक चार्जेस के साथ में जीएसटी एलिमेंट भी लगा। सपोज उस क्लाइंट ने इस साल लोन भी लिया था तो बैंक चार्जेस 1 लाख रुपए थे, 1,18,000 रुपए टोटल हो गए इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको आइडियली करना ये चाहिए था कि 18,000 का आईटीसी लेना चाहिए था और 1 लाख रुपए बैंक चार्जेस एज एक्सपेंडिचर होना चाहिए था। अब अगर आपने आईटीसी नहीं लिया, समझिएगा, अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो इसका मतलब 1,18,000 रुपीज आपने पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिख दिए होंगे। आपने उसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखा, राइट। और इसके कारण से समझिए, और इसके कारण से आपने इसको सेक्शन 37(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का फायदा लेते हुए इसका डिडक्शन ले लिया, राइट, और आपने इनकम टैक्स कम जमा कराया। अब मैं कह रहा हूं उस 1,18,000 में से 18,000 रुपीज, 18,000 रुपए की रिकवरी हो गई, और वो 18,000 रुपीज की जैसे ही रिकवरी हुई उस रिकवरी को आपने पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दिया अगले साल। आई रिपीट, ये 18,000 को आप अगले साल पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में शो कर दें। और अगर ये केस कॉर्पोरेट का है तो आप रेवेन्यू और फिर अदर इनकम, समझ रहे हैं आप, है ना, रेवेन्यू, एक तो पहला तो रेवेन्यू होगा और दूसरा फिर अदर इनकम के अंदर आप शो कर दें, राइट। और नहीं तो उसे फेस ऑफ पीएनएल नीचे ही इसी पीएनएल स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ही आप प्रायर पीरियड आइटम के नाम से भी शो कर सकते हैं, और इसको करंट ईयर में आप इनकम टैक्स को ऑफर कर दें। मतलब मैं यहाँ पर इनकम टैक्स सेक्शन की बात करूं तो सेक्शन 41 सबसेक्शन 1 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ठीक है, ओके। अदरवाइज जहां तक की बात, जब भी कभी बात टेकन की आएगी तब हमेशा ही वो टेकन है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ओके। आरसीएम लायबिलिटी हमने चुकाई नहीं चुकाई, कब उसका आईटीसी मिलेगा, कैसे उसका रिकंसिलिएशन होगा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो सबसे पहले तो अपन ये समझे कि आरसीएम आपने 17-18 का या 18-19 का आज तक भी नहीं चुकाया। क्या बोल रहा हूं मैं, 17-18 का और 18-19 का आपने आरसीएम आज तक भी नहीं चुकाया। देखिए आरसीएम आपके केवल फ्रेट पर नहीं, आप इसमें ऐसा अज्यूम करिए कि ये मेजर बहुत बड़ा आइटम हो सकता है, राइट। से फॉर एग्जांपल जितने भी आपके माइंस ओनर हैं, उनमें हर बार उन्होंने एक रॉयल्टी का अमाउंट पे करा है, उस रॉयल्टी को भी सर्विस की डेफिनेशन में कवर कर लिया है। दैट रॉयल्टी इज आल्सो कवर्ड अंडर द एम्बिट ऑफ सर्विस, आप समझिए। और क्योंकि अब वो सर्विस है, सर्विस गिवन बाय गवर्नमेंट है, तो उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आ जाएगी। और लोगों ने 17-18 का 18-19 का आरसीएम अभी तक नहीं जमा कराया है। सर मैंने दिए हैं रिप्लाई, मैंने दिए हैं कई सारे प्रोफेशनल्स को, मैंने इसके रिप्लाई बनाकर दिए हैं। क्या उसके अंदर जो मेन कंटेंशन हमारा रहेगा, समझिए, जो मेन कंटेंशन रहेगा वो ये रहेगा, आप समझिए। पहली बात तो ये हो गया कि मैंने उसके ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी आज से जमा नहीं कराई थी, ठीक है। तो आप ये देखिए एक तो कि क्या 17-18 का ऐसा था, कि मैंने आरसीएम लायबिलिटी नहीं चुकाई थी और क्लेम कर ली थी, ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने चुकाई नहीं थी, उसका क्लेम भी नहीं किया था, यही हुआ होगा। तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि 17-18 की कोई आरसीएम की लायबिलिटी आप ऐसा अज्यूम कर लें कि मैंने 18-19 में चुकाई थी, अगर चुकाई है तो ताकि 18-19 को 19-20 में कैरी फॉरवर्ड कर सकें। कभी कभी कुछ केसेस में कम से कम जीटीए को लेकर तो ऐसी पॉसिबिलिटी है, राइट। नोटिफिकेशन नंबर 12 के अंदर तो ऐसी पॉसिबिलिटी, 13 के अंदर तो ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास बन जाएगी। लेकिन अदरवाइज आपके पास रॉयल्टी के ऊपर आरसीएम की लायबिलिटी तो कुछ केसेस में 50-60 लाख का आरसीएम का अमाउंट है, 50-60 लाख की जीएसटी अमाउंट बोल रहा हूं, मतलब मैं, समझ रहे हैं, वो आगे कैरी फॉरवर्ड करने की पोजीशन नहीं रह पाएगी। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट ये यहाँ पर बनता है। तो अगर हम आगे एडजस्ट कर पाए तो बहुत ही बढ़िया। अरे अंकित सर, ऐसे इतना तो एडजस्ट हमने कर ही लिया है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। पॉइंट तो ये है कि हम इसको अगले साल तक भी एडजस्ट नहीं कर पाए हैं, तो क्या करना है, क्या इसको आज पे ऑफ कर दें, आज इसका आईटीसी मिल जाएगा। समझिए यहाँ पर ध्यान से, 17-18 का या 18-19 का आज पे ऑफ करेंगे तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 विल आल्सो कम इनटू पिक्चर, राइट, कि सितंबर तक आपको लेना था, फिर उसके नोटिसेस आएंगे, तो वो भी सब एक इशू है। तो सबसे पहली बात तो ये, आरसीएम के केस के अंदर आपको सेक्शन 31(3)(f) के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा हूं मैं, सेक्शन 31(3)(f) के अकॉर्डिंग आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग करनी थी। आई रिपीट, आपको एक सेल्फ इनवॉइसिंग करनी थी। और क्योंकि आपने आरसीएम का पेमेंट नहीं करा तो आपने सेल्फ इनवॉइस भी नहीं करी है। और मेरा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 जो है उसमें डेट ऑफ इनवॉइस काम की है,
डेट ऑफ ट्रांजैक्शन काम का नहीं है। यस आई एग्री कि टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस फॉलो नहीं हो पा रहे हैं, सेक्शन 13 फॉलो नहीं हो पाया है यहाँ पर, तो उसकी लाइबिलिटी में भुगतने को तैयार हूं सर। डिपेंड ये यहीं पर करेगा कि कितना है आपका आरसीएम का अमाउंट। अगर वो अमाउंट ह्यूज है, एंड इफ द असेसी, सेकंड पॉइंट इज इफ द असेसी इज रेडी टू गो बियॉन्ड सेकंड एपिलेट, समझ रहे हैं, कम से कम सेकंड एपिलेट तक तो आपको जाना ही जाना पड़ेगा। अगर वो असेसी तैयार है, अमाउंट बड़ा है, तो डेफिनेटली इस तरह की बात की जा सकती है कि अगर पुराना आरसीएम था आपने अभी तक नहीं चुकाया तो अब चुका दें और उसका आईटीसी ले लें। अगर इस पे डिटेल में भी किसी को चर्चा करनी हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ठीक है। ओके, अब क्या ऐसा करके हम 17-18 की आईटीसी भी ले लें? क्या 17-18 की आईटीसी हम आज ले लें? सर देखिए 17-18 की आईटीसी में तो थोड़ी गड़बड़ हो सकती है, हाँ, लेकिन 18-19 की आईटीसी तो बिल्कुल आप एडजस्ट कर सकते हैं 19-20 में। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि 19-20 के अकाउंट्स भी ओपन है सर। टैक्स ऑडिट हम में से कितने लोगों ने कर दी है, राइट? और अब तो आपके पास टैक्स ऑडिट डेट एंड जीएसटी ऑडिट डेट एंड दोज आर ऑफ डिफरेंट ईयर्स, राइट? दोज आर ऑफ डिफरेंट ईयर्स। तो हम क्या एडजस्ट कर रहे हैं इस 30 सितंबर को? समझिए इस 30 सितंबर को हम क्या करना चाह रहे हैं। इस 30 सितंबर जो लास्ट डेट थी वो बढ़ाकर जो 31 अक्टूबर करी, वो 31 अक्टूबर अब किस किस की डेट है? पहली बार जीएसटी ऑडिट 18-19 की, उस 18-19 की जीएसटी ऑडिट करते वक्त आपको 17-18 का इंपैक्ट भी देना है, ध्यान रखिएगा, राइट? दूसरी बात 19-20 की टैक्स ऑडिट की, और हम करंट ईयर की तो जीएसटी रिटर्न्स भर ही रहे हैं। एंड माइंड यू, ये जो रिटर्न जो अब भरेंगे इस 20 अक्टूबर तक, वो सितंबर के रिटर्न है। सितंबर के रिटर्न तक आपको सारे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, राइट? तो एक साथ में एक ही महीने में हम तो 4 ईयर चला रहे हैं सर। हम कोई भगवान से कम थोड़ी। ओके, खैर क्या क्या रिकंसाइल आपको करना पड़ेगा? पहली बात, आउटवर्ड लाइबिलिटी आपको रिकंसाइल करनी पड़ेगी। अब आउटवर्ड लाइबिलिटी किस किस चीज की क्या रिकंसाइल करनी है सर? 3B की 1 से, 3B की बुक्स ऑफ अकाउंट से, जीएसटीआर 1 की बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, वो आपस में आपको आउटवर्ड लाइबिलिटी सेटल करनी है, रिकंसाइल करनी है। और जो कोई भी एडजस्टमेंट्स हैं वो आपको इस सितंबर के रिटर्न तक करने हैं सर। सिमिलरली इनवर्ड आईटीसी भी आप देखिए कि कितना आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आईटीसी है, कितना आपने अवेल किया है थ्रू 3B, एंड कितना आपको 2A में दिख रहा है। 2A की बात भी है क्या सर यहाँ पर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक रूल और आया था, रूल 36 सब रूल 4, ऐसा ध्यान तो आ रहा है, हाँ ध्यान तो आ रहा है। रूल 36 सब रूल 4 और आया था, जो शुरुआत में तो 20% से आया था, बाद में वो 1 जैन 2020 से 10% ही हो गया था। तो जितना भी 2A के अंदर दिख रहा है एलिजिबल, उसका मैक्सिमम 10% तक ही और आप ले सकते हैं, राइट? अपन 36 सब रूल 4 भी अभी डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो वो आपको छूट मिल गई थी ड्यूरिंग कोविड रिजीम कि फेब से लेके अगस्त तक के कोई भी अगर एडजस्टमेंट्स हैं वो आप सितंबर के रिटर्न में कर लीजिएगा, राइट? तो ये वाली सितंबर की 3B रिटर्न तो रियली बहुत ही डेंजरस हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक अपने क्लाइंट्स को मेल नहीं भेजा है कि आप प्लीज अपना आईटीसी चेक कर लें बुक्स ऑफ अकाउंट से, आप प्लीज अपना आईटीसी चेक कर लें, बुक्स ऑफ अकाउंट से चेक कर लें, 3B से चेक कर लें, 2A में अपीयर हो रहा है कि नहीं वो चेक कर लें। प्लीज आप अपने क्लाइंट्स को इस तरह का मेल आप जरूर भेजिए, क्योंकि अगर कुछ आईटीसी इसमें रह गया या कोई भी एडजस्टमेंट करना है, देन दिस इज द फाइनल टाइम। इसके बाद आप वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो अपन वो उसको कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट के साथ करेंगे और एक लड़ाई परमानेंट जारी है कि इस डेट को बढ़ाएं, राइट? हर बार हम यही बात करते हैं कि डेट को बढ़ाएं। सर जो काम अपने लेवल पर है हम वो तो करें। क्या आपने, मैंने हमारे क्लाइंट को ये मेल भेजी है? सर नहीं भेजी है। भेजिए, अब भेजिए सर, प्लीज भेजिए, राइट? उन्हें आप याद तो दिलाएं, उन्हें आप एजुकेट करने की कोशिश तो करें। ओके, देन अगर जीएसटी रिटर्न्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिफरेंस है तो कैसे एडजस्ट करें? जितना 3B से एडजस्ट हो जाए उतना 3B से करते हैं, पर कभी कभी 3B के अंदर ऐसा हो जाएगा कि एडजस्ट होने की गुंजाइश रहेगी ही नहीं, फिर उसे एनुअल अकाउंट से एडजस्ट करें, एनुअल रिटर्न से एडजस्ट करें, राइट? ओके फाइन। तो जीएसटीआर 1 का 3B से, जीएसटीआर 3B का 2A से, और इन सब का भी बुक्स ऑफ अकाउंट से, ये भी एक रिकंसिलिएशन अब आपको करना पड़ेगा। फॉर दैट समझिए, या तो आपको इस सॉफ्टवेयर की हेल्प ले, या फिर इसके लिए बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से हम इसको पाइवॉट टेबल के थ्रू कर सकते हैं। तो जब भी कभी भी जब प्रोग्राम मुझे कहती है तो अपन उस पाइवॉट टेबल को भी अपन लाइव फेस टू फेस अपन उसको कर सकते हैं। तो हाथों हाथ ही, मतलब विदिन 3 to 5 मिनट, समझिए विदिन 3 to 5 मिनट्स आपके पास इस तरह का एक कंपैरेटिव चार्ट निकल कर आ जाएगा कि ये इनवॉइस ऐसे हैं जिसका जो बुक्स में है लेकिन 2A में नहीं दिख रहे हैं,
बुक्स में है आपने 3B पे नहीं लिए, या अमाउंट डिफरेंट है, या 2A में है आपने बुक्स में नहीं लिए, या बुक्स में है आप 2A में नहीं दिख रहे हैं, व्हाटएवर एज द केस में भी, या डिफरेंट अमाउंट है, सब कुछ हर तरह का कंपैरिजन उसमें आ जाएगा। ओके, कोविड इम्पैक्ट के अंदर कुछ कुछ स्पेशल बातें, एक बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, गुड्स हमारे पास लेट आए तो आईटीसी उसका सर 1920 मिलेगा या 2021 में, एकदम क्लियर है 2021 में मिलेगा। क्यों? बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या कहता है, गुड्स और सर्विसेज रिसीव होने चाहिए, राइट, रिसीव होने जरूरी है, उसके बिना आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। क्या आपको आईटीसी रिवर्स करना है अगर ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए ड्यू टू लॉकडाउन? बिल्कुल करना पड़ेगा सर। अरे यार ये तो पता ही है हमें, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ब्लॉक रेट, ये तो पता ही है, कोई स्पेशल बात हो तो बताओ यार, इसमें क्या खास बात है? देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात, जनरल बात तो यही है कि सेक्शन 17(5)H ये कहता है टैक्स क्रेडिट इसका नहीं मिल पाएगा। क्यों? गुड्स लॉस, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फी सिंपल, कैसे भी खराब भी हो जाए तो भी, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट टैक्स प्लानिंग, देखिए पहली इंपॉर्टेंट बात, हम इन खराब हुए हुए गुड्स को थ्रो अवे प्राइसेस, मतलब बहुत ही कम रेट्स पर बेच दें, हम इनको बहुत ही कम रेट्स पर बेच दें और उसका आईटीसी ले लें। क्योंकि कहीं भी अपने जीएसटी लॉ में, जीएसटी एक्ट में, जीएसटी रूल्स में, नोटिफिकेशंस में, सर्कुलर्स में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपने अगर कोई चीज 100 रुपए खरीदी है तो आप इसे 100 से कम कर नहीं बेच सकते, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। समझ रहे हैं? वेट वेट वेट, इस तरह की बात लिखी हुई थी राजस्थान वैट में, राजस्थान वैट में इस चीज की रोक थी, लेकिन जीएसटी में इस चीज की रोक नहीं है सर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? मतलब आप कोई चीज 100 रुपए खरीदें तो आप उसे 100 से कम की बेच सकते हैं, कोई आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता जीएसटी में। ओके ओके, तो इस तरीके से अपन ये तो एडजस्ट कर सकते हैं, पहली चीज तो ये। लेकिन ये जरूर ध्यान रख लीजिएगा कहीं आपके गुड्स कोई फूड इंडस्ट्री को बिलोंग तो नहीं करते, क्योंकि फिर उस केस में स्टेल फूड्स हो जाने पर कोई दूसरे तरह के लीगल कॉम्प्लिकेशन नहीं उलझ जाए। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल एफएस का लाइसेंस हो जाए, कुछ भी चीज। क्या आपको आईटीसी मिलेगा सैनिटाइजर पर, मास्क पर, कोविड प्रोटेक्शन आइटम्स पर? क्या आपको इसका आईटीसी मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है लोगों के दिमाग में। देखिए पहली बात, आईटीसी मिलने के लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। इट शुड बी यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये पहली कंडीशन हो गई। और दूसरी बात, सेक्शन 16(2) की कंडीशन फॉलो हो, आईटीसी ब्लॉक नहीं हो। कंफर्टेबल है ये तो बात एकदम। अब क्या ये कोर्स और बिजनेस, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है? ये चीज कहीं भी डिफाइंड नहीं है। टेकिंग इट्स नेचुरल मीनिंग एंड डिराइविंग द कंसेप्ट फ्रॉम प्रीवियस केस लॉज, जो हमारे पास प्रीवियस रिजीम में हुए, क्या कहता है कंसेप्ट, समझिए। देयर इज सफिशिएंट jurisprudence अंडर द erstwhile scheme, मतलब पुरानी, where it had been explicitly established that the phrase in the business does not only include manufacturing but also other functions associated directly or indirectly with manufacturing। समझिए, कोई भी चीज जो दूसरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली से गवर्न हो सकती है वो सब यहाँ पर कवर होगी। इवन फैक्ट्री एरिया के गार्डन का मेंटेनेंस भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, मतलब जरूरी नहीं है डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ही हो, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। और अब तो मैन्युफैक्चरिंग की भी जरूरत नहीं है, राइट। एज इज आर टू प्रोवाइड अ सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट टू एम्प्लॉइज सो एज टू कंडक्ट बिजनेस फॉर इट्स एग्जीक्यूशन एंड एडवांसमेंट। हम हमेशा ये बोलेंगे कि हमने जो सैनिटाइजर, मास्क जो एम्प्लॉइज को दिए वो जरूरी था, किस लिए? सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट के लिए, और इस कारण से इसका आईटीसी जरूर मिल जाएगा। वेट वेट वेट, कहानी खत्म नहीं हुई है। अब दूसरी बात तो ये है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सर वो तो फुलफिल हो गया, वो तो फुलफिल, चारों कंडीशन फुलफिल हो गई सर, वो क्लियर है। अब 17(5)G और 17(5)H में तो कहीं ब्लॉक नहीं है। आप पहले तो ये समझिए, क्या ये पर्सनल कंजम्पशन में कवर नहीं होगा? क्या ये पर्सनल कंजम्पशन का पार्ट नहीं बनेगा? जो भी मास्क, सैनिटाइजर यूज हुए एम्प्लॉइज ने यूज करे, राइट, या फिर आपने फ्री गिफ्ट या सैंपल की तरह बांट दिए? तो अब आप समझिए, इसमें सुनना ध्यान से। पहली बात, जो भी कोई चीज हम एम्प्लॉइज को दें ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट, वो पर्सनल कंजम्पशन कभी भी नहीं मानी जाएगी, लेकिन ये ऐसा माना जाएगा दीज एक्सपेंसेस एंड हेंस आईटीसी वाज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्चार्ज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट ड्यूटीज, और 17(5)G में वो ब्लॉक रेट नहीं बनेंगे। सिमिलरली, क्या वो फ्री गिफ्ट या सैंपल में अटक जाएंगे 17(5)H में? सर ये हमने फ्री गिफ्ट या सैंपल की तरह दिया ही नहीं है। क्या हम इन गुड्स में डील करते हैं? नहीं करते हैं, बिल्कुल। अब आप ऐसे समझिए, ये सैनिटाइजर, मास्क वगैरह काम में आए हमारे कस्टमर के, ये तो बात अभी तक हमारे एम्प्लॉइज की थी, अब ये काम में आए हमारे कस्टमर्स के। अपना कस्टमर आया,
फैक्ट्री प्रीमाइसेस में आया, ऑफिस में आया, उसने सैनिटाइजर यूज करा, तो क्या उसका आईटीसी मिल पाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा सर, बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि अगेन सच एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो वही आइडियोलॉजी, वही एनालॉजी लगाते हुए उसका आईटीसी आपको जरूर मिल जाएगा। लेकिन अगर हमने ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के थ्रू सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 को यूज करते हुए अगर हमने बंटवा दिए, तो क्या इसका आईटीसी मिल पाएगा? नहीं सर, तो इसका आईटीसी आपको नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं माना जाएगा फॉर ऑल प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अब एक और स्पेशल जो बात आती है वो है ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। ये भी एकदम जबरदस्त पॉइंट है, और जितने भी आपके पास होलसेलर्स, रिटेलर्स, डीलर्स हैं, सबके लिए काम की बात है। हो क्या रहा है, कहानी जरा समझिएगा। पहले अपन ये बिजनेस मॉडल की बात करें, फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी एज पर लॉ, समझिएगा। अच्छा, एक डिस्काउंट तो बहुत कंफर्टेबल है, एनी डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एनी डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई विल नॉट बी इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। समझ रहे हैं आप, वो कभी भी सप्लाई का पार्ट नहीं बन पाएगा, एंड हेंस ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आउटपुट लायबिलिटी, आउटवर्ड लायबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ये तो बहुत कंफर्टेबल है, पर तो क्लॉज बी की बात कर रहे हैं मेजरली, है ना। आप जरा पहले एग्जांपल समझिए। ये जैसे कोई भी चीज, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वाला कोई चीज खरीदे, ठीक है, तो उसका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है? उसने लैपटॉप खरीदा, उसने मोबाइल खरीदा, उसने पेन ड्राइव खरीदी, उसने कुछ भी चीज खरीदी, ठीक है ना। तो उसने सपोज ये पेन ड्राइव खरीदी, और ये पेन ड्राइव उसने 100 रुपीज के हिसाब से खरीदी, ठीक है, ये पेन ड्राइव उसने 100 रुपीज के हिसाब से खरीदी, सुनिएगा। और अब उसको एक टारगेट मिला है कि अगर वो वीक में, फोर्टनाइट में, मंथ में, क्वार्टर में, एज अ केस में भी कुछ भी हो सकती है टर्म्स, कि अगर वो एक सर्टेन बिजनेस अचीव कर ले, सपोज वो इस पेन ड्राइव का 10 लाख रुपए का बिजनेस अचीव कर लेता है ड्यूरिंग अ मंथ, तो हम उसे एडिशनल 10% डिस्काउंट देंगे। इस तरह का आपके पास पहले से ही एक अग्रीमेंट बना हुआ है, राइट? समझिएगा बाप। तो वो क्या करता है, ये पेन ड्राइव जो उसके 100 रुपीज की पड़ी, मैं जीएसटी एलिमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, जो उसकी 100 रुपीज की पड़ी, कॉस्ट की बात कर रहे हैं अपन सिर्फ, वो इसको 94 में बेचना चालू कर देता है। तो उसका प्रोडक्ट दूसरे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में चीप हो गया, सस्ता हो गया, राइट? और उसका प्रोडक्ट ज्यादा बिकने लगा, जिस कारण से उसका टारगेट अचीव हो गया। और अब ये टारगेट अचीव होते ही उसको 10% डिस्काउंट मिल गया, तो जो चीज 100 रुपए की थी वो चीज अब 90 रुपीज की हो गई। तो उसका बिजनेस एंगल ये है कि वो अभी पहले 100 की खरीदता है, उसको 94 की बेचता है, और वो 100 की चीज अल्टीमेटली 90 की हो जाती है, तो नेट उसका बेनिफिट 4 रुपीज का रह जाता है। ये उसका ब्रॉडली, सपोज अपन ऐसा करें कि ये उसका बिजनेस है, राइट? तो क्या अब ये जो डिस्काउंट मिला, ये जो डिस्काउंट आपको मिला, क्या इस डिस्काउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ये एक बहुत बड़ा मसला है। एंड बिलीव मी, आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्लाइंट्स जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का बिजनेस कर रहे हैं, या कोई कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर रहे हैं, सीमेंट इंडस्ट्री में हो, टायर ट्यूब इंडस्ट्री में हो, कोई भी वो जहां भी कहीं बड़े डीलर्स हैं, सबके लिए यही पोजीशन है। ओके, तो सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 की अपन बात करें, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, समझिएगा, शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट व्हिच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। 15(3)(a) तो आपको आता ही था, जो मैं आपको बोल रहा था कि ये डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट है जो एट द टाइम ऑफ सप्लाई दिया, तो बात ही खत्म, अब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और ऑटोमेटिकली, समझिए, ऑटोमेटिकली हम इस डिस्काउंट के अमाउंट को हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम कर लेंगे। हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम करके क्या होगा सर? हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से जैसे ही ये अमाउंट कम होगा, समझिए, जैसे ही अमाउंट हमारे पास वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम होता है, वैसे ही अपने आप ही हमारी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, राइट? मेजर पॉइंट तो 15(3)(b) का है। वापस शुरू से लाइन पढ़ता हूं सेक्शन 15(3)(b) तक पहुंचने के लिए। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट, shall not include any discount which is given after the supply has been affected. Shall not include any discount लिखा है, which is given after the supply has been affected if such discount, अब 3 कंडीशन है, 2 ही दिख रही है सर हमें तो, पर 3 है सर, देखिए,
Such discount is established in terms of an agreement entered into at or before the time of such supply. मीनिंग देयर बाय कि अगर वो इतना टारगेट अचीव कर लेगा तो हम 10% डिस्काउंट दे देंगे, कुछ इस तरह की बात, राइट। तो हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, ये पहले से ही एग्रीमेंट तय हो, ये पहले से ही एग्रीमेंट तय हो, ये बहुत ज्यादा स्पेशल बात है। दूसरी पॉइंट, ये सबके पास ही होता है। अच्छा, क्या ये एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या ये एग्रीमेंट आपके पास हाथ में हार्ड कॉपी होना चाहिए, मेल पे चलेगा क्या? सर दोनों चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एग्रीमेंट तो किसी भी केस के अंदर आपके पास अवेलेबल हो ही जाएगा, और नहीं तो बैकडेट पे भी साइन हो जाएगा। ओके। एंड स्पेसिफिकली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइसेस, ये एक बड़ा मैटर है। सामने वाला ओरिजिनल सप्लायर जब आपको डिस्काउंट देगा, सामने वाला ओरिजिनल सप्लायर जब आपको डिस्काउंट दे, सुनिएगा, तो वो उस डिस्काउंट के लिए जो भी क्रेडिट नोट दे रहा है, उस क्रेडिट नोट में हर एक इनवॉइस का रेफरेंस नंबर हो। उस क्रेडिट नोट में हर एक इनवॉइस का रेफरेंस नंबर हो। सर इसका क्या मतलब है? देखिए, सपोज उसको टारगेट अचीव करना था 1 महीने के अंदर, उस 1 महीने के अंदर उसने 5 बार गुड्स मंगाए सामने वाले से, तो 5 अलग अलग इनवॉइस आई। अब जो क्रेडिट नोट जाएगा, उस क्रेडिट नोट के अंदर उन 5 इनवॉइस का रेफरेंस हो, उन 5 इनवॉइसेस का हवाला हो। समझ रहे हैं आप? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। एंड तीसरी कंडीशन समझिएगा आप, एंड की मतलब पहली कंडीशन बीच में ही एंड था, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड पॉइंट है, वो तीसरी कंडीशन क्या बोलता है वो, ITC as is attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of supply। क्या मतलब? ये जो भी ITC है यहाँ पर, जो भी ITC आपके पास आया डिस्काउंट के पर्टेनिंग, वो अगर रिसिपिएंट रिवर्स कर दे, तो ही आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में से कम होगा। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा सर, समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट वापस समझिए आप थोड़ा सा। पहली बात तो ये समझिए कि ये आपके ऊपर नहीं लग रहा, आपके सप्लायर के ऊपर लग रहा है। कहानी कैसे चलेगी? आपके सप्लायर के ऊपर। तो सुनिए, आपके सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई तब कम होगी, आपके सप्लायर की वैल्यू ऑफ सप्लाई तब कम होगी, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कम होने से उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तब कम होगी, उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी तब कम होगी अगर आप आपका ITC रिवर्स करते हैं। पहली कंडीशन, पहले से एग्रीमेंट हो। दूसरी कंडीशन, उसके क्रेडिट नोट में हर एक इनवॉइस का रेफरेंस हो। तीसरी कंडीशन, आप आपका ITC कम करते हो। तो ये जो तीसरी कंडीशन है ना, ये एनफोर्स करना ज्यादा जरूरी है। अब अपन बात करें अपने क्लाइंट की। अपना जो क्लाइंट है ना सर, वो रिसिपिएंट है, अपना क्लाइंट मेजरली रिसिपिएंट है, राइट। तो आपका रिसिपिएंट क्या इसके ऊपर अपनी ITC कम करता है? सर आप पूछकर देख लीजिए, वो इसकी ITC कम ही नहीं करता। तो हमें कैसे पता पड़ा साहब? अपने को कैसे पता पड़ेगा? सर उसका 2 वे चेक करेंगे, और ये चेक करें कि क्या इसके सप्लायर ने वो क्रेडिट नोट्स खुद के GSTR 1 में चढ़ाए थे। क्योंकि अगर खुद के GSTR 1 में चढ़ाए थे ना सर, तो फिर इंक्लूडिंग GST एलिमेंट आपको भी वो आपके 2A में दिख रहे होंगे। और अगर वो आपके 2A में दिख रहे हैं, अगर वो आपको आपके 2A में दिख रहे हैं, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप अपना वो ITC कम कर लें। समझ रहे हैं? अब इसमें थोड़ी सी बात और आगे अपन करें। तो ऐसा है, देखिए आपके पास तो वैसे भी एक्यूमुलेटेड ITC था, वर्षों से ऐसे ही चल रहा था कि मेरे पास 100 के ऊपर ITC आएगा और मैं 94 के अंदर बेचूंगा, तो 100% केस में 6 रुपए के डिफरेंस का जो ITC है वो तो आपके हमेशा ही पड़ा रहेगा। तो आपको ये रिवर्स करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई एडिशनल टैक्स लायबिलिटी नहीं आएगी। पहले तो आप ये समझिए। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, जो आपके पास ITC फंसा हुआ था, जो आपकी वर्किंग कैपिटल ब्लॉक थी, वो वर्किंग कैपिटल अब आपके सप्लायर के लिए काम में आ रही है, राइट। तो बेसिकली आपने उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम कर दी, उसने आपके अकाउंट को उतने रुपए से क्रेडिट कर दिया, और इनडायरेक्टली आपकी वर्किंग कैपिटल रिलीज हो गई। ये एक बहुत बढ़िया तरीके की टैक्स प्लानिंग यहाँ पर डिस्कस है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन सेक्शन 15(3)(b) की चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि सब तरह के अरेंजमेंट, सब तरह का एडजस्टमेंट, सब तरह की कहानियां यहाँ पर चल रही है। इनफैक्ट मैं आपको याद दिलाऊं, डिपार्टमेंट ने यहाँ पर एक सर्कुलर दिया भी था, उस सर्कुलर को डिपार्टमेंट ने रिवोक भी कर लिया। समझिए, डिपार्टमेंट ने भी उस सर्कुलर ऑफिस रिवोक कर लिया है, लेकिन उस सर्कुलर के अंदर आप
पैरा नंबर 4 एंड 5 पढ़िएगा, आपको बहुत सारी आइडियोलॉजी, आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप हो जाएगी कि किस तरीके से ये कहानी चल रही है, और आप अपने क्लाइंट के लिए कुछ रिप्लाईज दे पाएंगे, कुछ टैक्स प्लानिंग यहाँ पर हो पाएगी, राइट। तो ये सेक्शन 15(3)(b इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऐसा भी रहता है, सुनिएगा, कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आपका जो सप्लायर है वो आपको जीएसटी क्रेडिट नोट ना देकर सिर्फ फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट देता है। उस केस के अंदर आपको उसका आईटीसी रिवर्सल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसा सामने वाला आदमी क्यों करता होगा सर? ऐसा सामने वाला आदमी इसलिए कर रहा है क्योंकि वो वरना अपने रिसिपिएंट को ये सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 के क्लॉज बी के सब क्लॉज सेकंड के लिए फोर्स ही करता रह जाएगा, लेकिन उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम नहीं हो पाएगी क्योंकि ये रिसिपिएंट अपना आईटीसी कम नहीं करता। तो शुरुआत से एकदम क्लियर है, बोले मुझे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम करनी नहीं है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है, समझ रहे हैं? तो अगर आपके क्लाइंट का सप्लायर ऐसा है, आई रिपीट, अगर आपके क्लाइंट का सप्लायर ऐसा है, कैसा कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको कमर्शियल क्रेडिट नोट देता है, फाइनेंशियल क्रेडिट नोट देता है, दैट टू वो मेल पर आ जाते हैं या फिर अकाउंट स्टेटमेंट देखकर पता पड़ते हैं, समझ रहे हैं, मतलब 2A में नहीं दिख रहे, तो आप इस तरह की टैक्स प्लानिंग अपने क्लाइंट के सप्लायर को जरूर बताएं, राइट, ताकि आपके क्लाइंट की बड़े अमाउंट की वर्किंग कैपिटल रिलीज हो सके। दिस थिंग कैन बी डन एंड इट शुड बी डन। अब यार अमोक भाई का धीरे से मैसेज आया, बोले यार वो सब छोड़ यार अंकित भाई, इसमें करना क्या है फाइनली ये बता दो, आप पता कैसे पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करना क्या है? सर देखिए, अगर आप इस डिस्काउंट को, सुनिएगा ध्यान से, अगर आप इस डिस्काउंट को P&L अकाउंट में लिख रहे हैं, मतलब इसको एक्चुअल में क्या है कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 3 तरीके से संभव है। पहला, आप इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिख रहे हैं। दूसरा, कई लोग इसको ट्रेडिंग के क्रेडिट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, मतलब अदर डायरेक्ट इनकम के नाम से। और तीसरा, आप इसे परचेज में से कम करके शो कर रहे हैं। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं इस डिस्काउंट को एडजस्ट करने की, राइट। सर सबसे बेटर कौन सी है? टू माय अंडरस्टैंडिंग आप इसको परचेज में से कम करके शो कर दें, ताकि डिपार्टमेंट का कम से कम उस बारे में तो नोटिस ना आए। सर देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में या P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में कोई भी आइटम ऑफ इनकम अगर दिखेगा तो पूछेगा इसके ऊपर आपने टैक्स क्यों नहीं भरा। तो एज फार एज अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड, एज फार एज अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन इज कंसिडर्ड, है ना, तो आप इसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज में से कम करके शो कर दें, क्योंकि अभी तक तो एज ऑफ नाउ आपको परचेज का अमाउंट जीएसटी में कहीं भी डालना ही नहीं होता, राइट। तो शायद डिपार्टमेंट को कहीं ये बात नजर में आने में, पकड़ में आने में टाइम लगे, या शायद ना पकड़ में आए, कम से कम वो हमारे पास नोटिस नहीं आएगा, तो हमारे क्लाइंट का और अल्टीमेटली हमारा बीपी नहीं बढ़ेगा, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो सकती है जो क्लोजर ऑफ बुक से रिलेटेड है, ठीक है ना। अब एक बात जरूर यहाँ पर निकल कर आएगी, हम तो सर इतने सालों से इसको P&L अकाउंट के क्रेडिट में शो कर रहे हैं, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था कभी, ऐसा सर जीएसटी के असेसमेंट चालू नहीं हुए अभी तक। और अपन जहां तक बात कर रहे हैं अगर पुराने रिजीम की, तो पुराने रिजीम के अंदर इस डिस्काउंट को आप लोग कमीशन बोल दिया करते थे। क्या इस डिस्काउंट को कमीशन बोल दिया करते थे? बिल्कुल सर, आपने क्लाइंट को बुलाकर पूछिए तो वो आपको ऐसे बोलेगा हाँ ये डिस्काउंट है, कमीशन के तौर पर हमें मिलता है, समझ रहे हैं। तो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ देखना पड़ेगा उस एग्रीमेंट को देखकर। सेक्शन 15(3)(b को इतना आसान नहीं लीजिएगा। सेक्शन 15(3)(b कैन बी रियली वेरी वेरी डेंजरस, इट कैन बी वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोपोजिशन, समझ रहे हैं, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो आप इसका एग्रीमेंट अरेंजमेंट जरूर देखिए। और अलग से कमीशन की बात होगी, टारगेट बेस्ड इंसेंटिव की बात होगी, और फिर डिस्काउंट की बात होगी। अगर वो डिस्काउंट है तो ही हमें कंसिडर करना है, बाकी अदरवाइज वो इंसेंटिव वर्ड अगर उन्होंने एग्रीमेंट में लिख दिया तो आप प्लीज क्लाइंट को रिक्वेस्ट करें कि वो अपने सप्लायर से वो अरेंजमेंट, वो एग्रीमेंट चेंज कराए, राइट, अदरवाइज इट में रिजल्ट इन सम इश्यूज। ओके, अब ऐसा है, मैं इसमें और थोड़ा सा अगर आगे बढ़ूं तो एक बात जो आपके मन में आएगी कि हम ऐसा जो करते जो आ रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं आया, तो वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसको कमीशन मान लिया जब भी आपने उसको कमीशन मान लिया, सुनिएगा, तो वो कमीशन तो सर्विस टैक्स में कवर हुआ, और क्योंकि आपकी 10 लाख रुपए का कमीशन बना ही नहीं था साल में, वैट में कंसिडर हुआ ही नहीं, सर्विस टैक्स में कंसिडर हुआ ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जीएसटी में तो गुड्स और सर्विस एक साथ है, तो दिस विल क्रिएट सम ट्रबल।
तो आप लोगों का कहने का व्यू यहाँ पर ये होगा कि अगर मैं इसको परचेज में से कम कर दूंगा देन इट मे अफेक्ट माय जीपी परसेंटेज, तो मैं इसको टैक्स ऑडिट में क्या करूंगा? सर बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है आपका। मेरी टैक्स ऑडिट की परसेंटेज एक साल तो बहुत ज्यादा हिलेगी, बहुत ही ज्यादा सब्सटेंशियल चेंज हो जाएगी। इस डिस्काउंट को जैसे ही परचेज में से लेस करूंगा ना, वैसे ही वो मेरी टैक्स ऑडिट की परसेंटेज इमेंस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन कम से कम इनकम टैक्स के नोटिस उस बारे में सेटल हो जाएंगे। कैसे? हम बहुत क्लियरली ये बोल देंगे कि ये जो डिस्काउंट है अगर हम P&L के क्रेडिट में भी लिखते तो भी अल्टीमेटली डाउन द लाइन नेट प्रॉफिट का टोटल अमाउंट उतना ही होता, जो कि अभी जीपी बढ़ जाने से अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ा है। एंड हेंस देयर इज नो रेवेन्यू लॉस। आई रिपीट, देयर इज नो रेवेन्यू लॉस। अच्छा, नॉट ओनली दिस, आपकी जीपी रेट बहुत ज्यादा हिल गई, राइट? आपकी जीपी रेट बहुत ज्यादा हिल गई, तो मैं ऐसा कहना चाह रहा हूं कि अगर आपकी जीपी रेट अगर बहुत सारी बढ़ गई है तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा कि आपकी जीपी रेट इस साल क्यों बढ़ गई साहब, आपने टैक्स ज्यादा क्यों दिया? ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि वो पिछले साल का नोटिस भेजे कि लास्ट ईयर आपकी जीपी रेट कम क्यों थी, राइट? तो उसका रिप्लाई आप ये बोलिएगा, देयर इज नो रेवेन्यू लॉस। इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं हम, जीएसटी की तो प्रेजेंटेशन की बात यही है। इट वुड बी बेस्ट कि हम अगर इसे परचेज में से कम करके शो करें। अब अपन इसी में थोड़ा सा और आए, सर क्लाइंट ही हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, बोलते हैं नहीं हम इसको परचेज में कम करके नहीं शो कर सकते, हम इसे परचेज में से कम करके नहीं शो कर सकते। तो प्लीज ट्राई टू कन्विंस हिम कि भाई आप इसकी बिलिंग कर दें, सामने वाली पार्टी को उसका आईटीसी मिल जाएगा, आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। वो उसके लिए भी तैयार नहीं है। मान लीजिए कि वो बिलिंग को लेकर भी तैयार नहीं है, अब क्या करें? तो सर बाय डिस्काउंट जैसे ही आप लिखें, और ये वो डिस्काउंट की बात हो रही है जो 2A में नहीं दिख रहा है, राइट? जो 2A में नहीं दिख रहा है। जैसे ही आप P&L अकाउंट में बाय डिस्काउंट लिखें, ब्रैकेट में लिख दें नॉन जीएसटी, ब्रैकेट में लिख दें नॉन जीएसटी, समझ रहे हैं? तो बाय डिस्काउंट आप लिख दें, ब्रैकेट में लिख दें नॉन जीएसटी, सो दैट ऑन अ प्रिलिमिनरी बेसिस एटलीस्ट कोई अगर नोटिस आना है तो वहीं पर रुक जाए जीएसटी डिपार्टमेंट, राइट? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है एज फार एज क्लोजर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज टू बी कंसिडर्ड, राइट? और यहां पर ये आईटीसी भी साथ में इन्वॉल्व है। ओके, मैं थोड़ा सा और प्रोसीड करता हूं। इसके अंदर कुछ फेक इनवॉइसेस को लेकर भी बहुत बड़ी चर्चा है, और डिपार्टमेंट के पावर ऑफ अरेस्ट अंडर सेक्शन 69, जो भी सेक्शन 132 के अंदर रीजंस दे रखे हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर, ब्ला ब्ला ब्ला, समझ रहे हैं आप? तो शायद केवल इस पॉइंट को लेकर भी मैं अलग से 2 घंटे का सेशन दे सकता हूं सर, और इसके अंदर साथ में अपन ईवी बिल को भी इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? तो एक बहुत बड़ा मैटर ये भी बन सकता है। खैर अभी क्या करना है अपन तो ये देखें। तो सेक्शन 69 ये कहता है पावर ऑफ अरेस्ट, सेक्शन 132 है पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है? फेक इनवॉइस क्या है? हमारी जो लड़ाई होगी डिपार्टमेंट से वो होगी फेक इनवॉइस क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली वो आईटीसी रिफ्यूजल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आईटीसी रिफ्यूजल की बात कर रहे हैं। जब भी कभी भी वो पूरी चेन जो इन्होंने पकड़ी, समझ रहे हैं आप, फेक इनवॉइस की चेन पकड़ी, वो हो क्या रहा है समझिएगा, हो क्या रहा है? वो ऐसा बोल रहे हैं कि भाई सामने वाले आदमी ने, सुनिएगा, सामने वाले आदमी ने कोई गुड्स का मूवमेंट करा ही नहीं, सामने वाले आदमी ने कोई गुड्स का मूवमेंट करा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, सामने वाला आदमी मान चुका है कि गुड्स है ही नहीं, गुड्स आए नहीं थे, ठीक है? तो आपको उसका क्रेडिट हम कैसे दें? तो ये तो पूरी चेन ही फेक इनवॉइस है। तो आप पहले तो सामने वाले डिपार्टमेंट से ये बोलें कि व्हाट इज मेंट बाय फेक इनवॉइस। इनवॉइस है, समझिए इनवॉइस है, दोनों पार्टीज के नाम लिखा है, जीएसटी नंबर लिखा है, एड्रेस सही है, सिग्नेचर भी हो रखा है, एंट्रीज भी हुई हैं दोनों की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और पेमेंट भी हुआ है ऑनलाइन बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, चेक, व्हाटएवर द पेमेंट मोड्स आर अवेलेबल। तो कैसे प्रूव होगा कि फेक इनवॉइस है? मैं तो नहीं मानता कि फेक इनवॉइस है ये, मेरे पास तो एक्चुअल में है ऐसा। और जहां तक गुड्स के मूवमेंट की बात है, तो मैंने उसको बोल दिया कि वहीं की वहीं गुड्स आप रहने देना, जो आएगा मैं वहीं से पार्टी से उठवा लूंगा। तो गुड्स के मूवमेंट नहीं हुआ तो ईवे बिल भी नहीं हुआ। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर तो उन्होंने ईवे बिल भी बना रखा है, तो जब ईवे बिल भी बन रखा है तो बात ही खत्म, फिर तो बात ही खत्म। देखिए, अगर आपका इमीडिएट सप्लायर अगर बोल दे कि ये तो सप्लाई हुई ही नहीं थी, जब तो शायद बचने के चांसेस कम हैं। लेकिन अगर सप्लायर अगर मना करे और सारी चेन में सबको पकड़ लिया जाए, तो फिर इससे बचा जा सकता है, समझ रहे हैं आप? आई अंडरस्टैंड आपका क्लाइंट गलत है यहाँ पर,
लेकिन हमें बात थोड़ी एक्सेप्ट करनी कि अपना क्लाइंट गलत है, ये भी तो समझिए आप, राइट। तो फेक इनवॉइस हम किसे बोलेंगे? हम फेक इनवॉइस उसे बोलेंगे कि अगर वो फॉर्ज्ड सिग्नेचर है, केवल तभी वो फेक इनवॉइस है, बाकी अदरवाइज सारी डिटेल उसमें अवेलेबल है। ओके, सपोज अगर दूसरी बात इसी में, सपोज अगर सप्लायर का बिजनेस एड्रेस इनवॉइस पर नहीं लिख रखा है, सप्लायर का बिजनेस एड्रेस जो है वो इनवॉइस पर नहीं लिख रखा है, क्या मेरा क्रेडिट डिनाई हो सकता है? क्या मेरा इस केस में क्रेडिट डिनाई हो सकता है? सर टू माय अंडरस्टैंडिंग विद द डीपेस्ट हम्बलनेस, नहीं सर, इसका क्रेडिट डिनाई नहीं होगा। पहली बात तो एज रिसिपिएंट आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप सप्लायर के प्लेस ऑफ बिजनेस चेक करते रहे, राइट। पहली बात तो आप ये समझिए, तो आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है ये चेक करना वेदर द फर्म इज एग्जिस्टिंग और नॉट एट द एड्रेस मेंशन्ड, समझ रहे हैं। और ड्यूरिंग द कोविड रिजीम आप खुद का घर का एग्जांपल देखिए सर, हम सभी ने पिछले 6 महीने में कई सारी चीजें ऑनलाइन मंगाई कि नहीं साहब? बिल्कुल मंगाई साहब, बिल्कुल मंगाई। तो क्या हमने उसका एड्रेस चेक करा हर बार? अरे सर वो रख जाता था कुरियर वाला, हम उसको 8-10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे पड़े रहने देते थे, उसकी स्लिप को पर्ची को हाथ भी नहीं लगाते थे, समझिए। तो आप और मैं उस इनवॉइस का एड्रेस चेक करने के भी सोचते भी थे क्या? नहीं सर, नहीं। तो क्या उसका आईटीसी नहीं मिलेगा? अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब बात यह है वेदर आईटीसी कैन बी डिनाइड टू बायर। ऐसा है सर, मेरा जो सेक्शन 16 है, जो मेरा बेस सेक्शन सेक्शन 16 है, उसमें सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 स्टार्ट्स विद नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज, समझ रहे हैं। तो उसके अंदर आपके पास अगर चारों कंडीशन, चारों कंसेंट फुलफिल हो रही हैं, तो आपको क्रेडिट कैसे डिनाई होगा, राइट। तो आपका क्रेडिट कभी भी डिनाई नहीं हो सकता। 16 सबसेक्शन 2 की चारों कंडीशन मैंने फुलफिल करवा दी होनी चाहिए, बस। अब हम अपना अगला लेग स्टार्ट करें ट्रांजैक्शन का, रूल 36 अब रूल 4 की हम थोड़ी सी चर्चा करें, और उसके बाद अपन कुछ स्पेशल पॉइंट्स, बुक क्लोजर के स्पेशल पॉइंट्स, कुछ बर्निंग इश्यूज को लेकर डिस्कस करते चलेंगे। तो रूल 36 अब रूल 4, सर अब तो वापस जागना पड़ेगा। रूल 36 अब रूल 4 अब दोबारा इंप्लीमेंट होने वाला है। ड्यूरिंग कोविड कुछ टाइम के लिए 6 महीने के लिए डेफर सा हो गया था, हमने भी नहीं सोचा, आपने भी नहीं सोचा, सब चल रहा था, क्लाइंट को तो खैर पता ही नहीं होता है, या वो जानबूझकर अनजान बन जाते हैं, राइट। तो रूल 36 सब रूल 4 क्या है? 9th of October 2019 को नोटिफिकेशन नंबर 49 आया, एंड इट रियली paved the way for one amazing and everlasting and eternal comparison of 2A and GSTR 3B। ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया। क्या है सर, क्या कहता है ये? सुनिएगा। ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under section 37(1) shall not exceed 20%। मतलब 9th of October 2019 से 31st of December तक तो ये 20% था, एंड फ्रॉम 1st of Jan 2020 ये 10% हो गया था। तो shall not exceed 10% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been uploaded by the suppliers। समझ रहे हैं? तो ये बात बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बनेगी। क्या है शॉर्ट में सम एंड सब्सटेंस इसका देखते हैं सर, इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे अपन, तो धीरे धीरे क्लैरिटी आती जाएगी। ओके फाइन। तो बेसिकली ये दोबारा भी अमेंड हुआ, नोटिफिकेशन नंबर 75 दोबारा आया, और उसके अकॉर्डिंग अभी 20% को 10% कर दिया गया है। ये 10% ये अच्छी बात है, बस कि ये प्रोस्पेक्टिव हुआ, मतलब 1st of Jan से 10% है। ओके, इसका मतलब 9th of October से 31st दिसंबर तक ये 20% था। ओके, बेसिकली इसका जो रूट सेक्शन है वो सेक्शन 43A है। अब सेक्शन 43A क्या कहता है? बेसिकली दैट इज प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग ITC। सर सरप्राइजिंगली बट ट्रू, सेक्शन 43A जो है वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। जो मैं आपको स्टार्टिंग में सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 के वक्त बोल रहा था कि न्यू रिटर्न फॉर्मेट अभी तक आया नहीं है, तो वो कैसे पता लगाएंगे कि हमारे सप्लायर ने इसके ऊपर टैक्स दिया कि नहीं दिया? मतलब बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज C, जो मैंने कहा था कि अल्टीमेटली कोई तरीका नहीं बचेगा प्रेजेंट रिटर्न फॉर्मेट के अंदर, तो आप आपके सप्लायर से लिखवा लें। क्या लिखवाना है उससे, उसके लेटर हेड पे ये इनवॉइस हमसे GSTR 1 में छूट गए थे, लेकिन हमने इसका टैक्स दे दिया है। समझ रहे हैं? लेकिन हमने इसका टैक्स दे दिया है। ये लास्ट लाइन होनी जरूरी है, ध्यान रखिएगा बस।
Okay, so notwithstanding anything contained in section 16(2), section 37(38), every registered person shall in the returns furnished under section 39(1) verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers. Then again non obstante clause subsection 2 के अंदर भी notwithstanding anything contained in section 41, 42, 43, the procedure for availing of ITC by the recipient and the verification thereof shall be such as may be prescribed. मतलब ये तो आपके पास 100% केस में वो रूल कर रहा है हर चीज को. Subsection 3, the procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal for the purpose of availing ITC by the recipient shall be such as may be prescribed. Okay, अब ये subsection 4 काम का है बहुत, सुनिएगा. The procedure for availing ITC in respect of outward supplies not furnished under subsection 3 shall be such as may be prescribed, and such procedure may include the maximum amount of ITC which can be so availed not exceeding 20% of the ITC available on the basis of details furnished by the suppliers under the said subsection. Wait. वो जो 20% आया था ना इनिशियली, वो मैक्सिमम 20% था जिसको 1 जनवरी से 10% कर दिया गया, राइट. नोटिफिकेशन नंबर 49 आया था. कब आया था? 9 अक्टूबर 2019 को आया था. तो इम्प्लीमेंट तो तब से हो गया था. तो सर इस साल की बुक क्लोजर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, इस साल की बुक क्लोजर के लिए, और हमने सोचा ही नहीं है, राइट. लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिलैक्सेशन और है सर. फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अगर ऐसा कोई एडजस्टमेंट रह भी जाए तो आप उसे सितंबर की मंथ की रिटर्न में एडजस्ट कर सकते हैं. क्या कह रहा हूं? इसका मतलब ये हो गया अक्टूबर 9 से लेकर 31 दिसंबर तक का 20% वाला क्लॉज, एंड देन जनवरी के लिए 10% वाला क्लॉज, वो तो फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन उसके बाद रिमेनिंग पीरियड के लिए, मतलब फ्रॉम 1st of Feb 2020 टू 31st March 2020 फॉर दिस ईयर स्पेशली, उसके लिए हम ये सेक्शन 43A का रेफरेंस, चलो ठीक है, और नहीं तो ये रूल 36 सब रूल 4 हम फॉलो नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा. ये कहने का मतलब है इस साल के लिए, ठीक है. ओके, तो अब इसके अंदर आगे क्या कहानी कहती है? Subsection 5, the amount of tax specified in outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under subsection 3 shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the act. Analysis, अपन अगर एक डिटेल में आप सोचें, ITC to be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes, the details of which have not been uploaded by the suppliers under section 37(1) shall not exceed 10%. ही बोल रहा हूं मैं तो, क्योंकि फर्स्ट दिन से 10% हो गया है. Shall not exceed 10% of eligible credit available in respect of invoices to debit notes, the details of which have been uploaded by the supplier. समझ रहे हैं? तो जितना भी आपके पास 2A में दिख रहा है, अपन इसको शॉर्ट में समझिए, जितना भी आपके पास 2A में दिख रहा है उसमें से पहले आप एलिजिबल क्रेडिट छाट लीजिए. मतलब जो ब्लॉक क्रेडिट है वो आप हटा दीजिए, या कोई ऐसा क्रेडिट है विच इज बीइंग ओनली फॉर 100% एग्जेम्प्टेड सप्लाई, उसको भी आप हटा दीजिए. मतलब एलिजिबल क्रेडिट हो, 2A में दिख रहा हो और एलिजिबल हो, पहले तो आप ये समझिए. 2A में से जो इनएलिजिबल है वो हटा दीजिए, ठीक है. तो अब एलिजिबल क्रेडिट आ गया. मैक्सिमम इसका 110% तक ही अलाउड है. मैक्सिमम इसका जो एलिजिबल क्रेडिट है ना, उसका मैक्सिमम 110% तक ही अलाउड है. ये शॉर्ट में सम एंड सब्सटेंस है इस बात का, ठीक है. क्योंकि ये बात अपन अभी आज बुक क्लोजर की कर रहे हैं, इसलिए हमें इस रूल 36 सब रूल 4 को डिटेल में समझना और इंप्लीमेंट करना जरूरी है. एंड दैट टू विद रिस्पेक्ट टू मंथ्स और कैरी फॉरवर्ड मंथ्स के साथ किस तरीके से चलेगा. ये देखिए, जो भी एग्जांपल मैंने लिए हैं वो एक बार सिंपलिसिटी के लिए, ताकि आपको समझ आए, तो 10% के हिसाब से मैंने लिए हैं. ये अगेन शॉर्ट के अंदर चीज, इसका मतलब वो ITC जो आपको 2A में नहीं दिख रहा है, उसका वो कितना ले पाएंगे आप? मैक्सिमम सर 10% ले पाएंगे आप एलिजिबल क्रेडिट का, ठीक है. एग्जांपल देखिए ग्राफ, ITC एज पर बुक्स इज 100, लेकिन एलिजिबल ITC एज पर 2A 60, तो आप कितना ले पाएंगे सर? 60 प्लस 10%, मतलब 66 ही ले पाएंगे. इसका मतलब समझ रहे हैं आप? बुक्स में तो ITC आपके पास इतना सारा है, लेकिन आप 3B रिटर्न्स के अंदर ITC 34 रुपीज का कम अवेल कर पाएंगे, which will ultimately result in your block credit, your working capital blockage. समझ रहे हैं? 34 रुपीज का आपके पास वर्किंग कैपिटल ब्लॉकेज हो जाएगा. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है.
बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, शायद आपको क्लैरिटी आए। अभी तक मैं इसके अंदर यही मान रहा हूं कि बहुत सिंपल सिंपल से केसेस हैं। देखिए एग्जांपल 1, जैन फेब मार्च अप्रैल, सिर्फ 4 महीने की बात हम कर रहे हैं। एलिजिबल आईटीसी एज पर बुक्स ये इतना इतना था। आईटीसी एज अपीयरिंग इन 2A, सुनिएगा ध्यान से। अब मैंने ऐसा मान लिया सिंपलिसिटी के लिए, फेब मार्च और अप्रैल तो 100% एलिड है बुक्स में और 2A में। फेब मार्च और अप्रैल 100% एलिड है, क्या ये बात आपको क्लैरिटी समझ में आ रही है? राइट, ये तो 100% एलिड है। सिर्फ एक जैन एलिड नहीं है आपका। जैन के अंदर बुक्स में तो 1000 रुपीज है, जबकि 2A में 700 दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ होगा? दो कारण हो सकते हैं। या तो जो आपका सप्लायर है वो इरेटिक है, वो उसने आपको खुद के जीएसटीआर 1 में नहीं डाला, किसी और का जीएसटी नंबर डाल दिया, आपके 2A में नहीं दिख रहा, एक कारण। दूसरा, हो सकता है कि जो आपका सप्लायर हो, सुनिएगा, हो सकता है कि जो आपका सप्लायर हो वो क्वार्टरली रिटर्न भरता हो, तो आपको जनवरी का जब आप भरेंगे, जब आप जनवरी का भरेंगे अपना 3B, तब तक आपको भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो आईटीसी नॉट इन 2A, ये 300 रुपीज आ गए। अब कितना आप अवेल कर पाएंगे? ये देखिए, ये अपन ने एग्जांपल में ये अज्यूम कर लिया है जितना भी आईटीसी दिख रहा है सारा एलिजिबल है, सबको 2A में जो दिख रहा है वो भी पूरा पूरा एलिजिबल है, सिंपलिसिटी के लिए। अदरवाइज आप समझिए कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। 2A में कितना दिख रहा है? 700। सर इसका 10% और बढ़ा लें, मतलब 70 रुपए और बढ़ा लें, तो कुल मिलाकर जैन मंथ के अंदर आप 770 क्लेम कर पाएंगे। जैन मंथ के अंदर आप 770 क्लेम कर पाएंगे। ये समझ रहे हैं आप कि जैन मंथ में आप इन दोनों का टोटल ये 770 क्लेम कर पाएंगे। इसका मतलब पर करना आपको 1000 था, तो इसका मतलब 230 रुपीज का आईटीसी अगले महीनों के लिए कैरी फॉरवर्ड हुआ है। ठीक है, अच्छा अगले महीने की अपन बात करें, 2A में कितना दिख रहा है? 800। तो आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे? सर 800 प्लस इसका 10% मतलब 80 रुपीज और, तो 880 आप कर पाएंगे। इसका मतलब 230 में से आपने 80 रुपीज और एडजस्ट कर लिए, तो अब रिमेनिंग कितना बचा सर? रिमेनिंग बचा 150, वो अगले महीनों के लिए। देन आपने 65 एडजस्ट कर लिए, 10% करता जा रहा हूं मैं, जितना भी एलिजिबल क्रेडिट दिख रहा है 2A में उसका 10% आ रहे हैं नीचे की, राइट। तो अब आपके पास 85 और बचा करने के लिए। देन लास्ट महीने के बाद आपके पास 10 और बचा करने के लिए। पता है ये एग्जांपल इतना ज्यादा सिंपल है कि सिर्फ एक सप्लायर है जिसने आपको जैन मंथ के अंदर नहीं डाला, या सिर्फ एक सप्लायर है जो क्वार्टरली सप्लाई आपको करता है, जो आपको सप्लाई करता है और खुद के रिटर्न क्वार्टरली भरता है, राइट। सिर्फ एक सप्लायर माना मैंने ऐसा, तो ये कॉम्प्लिकेशन है और बाकी सारे महीने टैलीड है, तब की बात है ये। अच्छा एग्जाम्पल 2 देखिए, अगेन सिर्फ फर्स्ट मंथ टैलीड नहीं है, बाकी फेब मार्च अप्रैल टैलीड है। अगेन सिमिलर सा लगेगा आपको, लेकिन देयर इज ह्यूज डिफरेंस, समझिए। तो पहले महीने कितना आप आईटीसी ले सकते हैं? सर 600 प्लस 60, 660 रुपीज आप आईटीसी ले पाएंगे। इसका मतलब जो आपके पास 400 रुपए का शॉर्टफॉल था उसमें से 60 आपने ले लिए, तो 340 का रिमेनिंग आईटीसी। नेक्स्ट महीने में आप 80 रुपीज ले पाएंगे और एक्स्ट्रा, तो 260 बच गया। नेक्स्ट महीने में आप 200 ले पाएंगे, तो आपके पास 60 ही बच गया। उसके नेक्स्ट महीने में 750 का 10%, 75। सर 75 नहीं, मैक्सिमम ये 60 रुपीज तक का ही आईटीसी ले पाएंगे। अच्छा ऐसा भी ध्यान रखना है सर, बिल्कुल ऐसा भी ध्यान आपको रखना पड़ेगा। मतलब कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि जो 2A में दिख रहा है मैक्सिमम उसका 10% तक लेने के चक्कर में आप पूरा ले लें, कहीं ऐसा ना हो जाए। मतलब जितना टोटल बनना है उससे ज्यादा थोड़ी ले लेंगे, क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा अवेल कर लिया, अगर आपने उससे ज्यादा यूटिलाइज कर लिया, और अगर डिपार्टमेंट ने आपको इसका शो कॉज नोटिस दिया, तो फिर उस केस में उस पर 24% तक भी इंटरेस्ट लग सकता है। ऑल्दो टिल नाउ स्टे अश्योर्ड, टिल नाउ आपके पास सेक्शन 50 सबसेक्शन 3 अभी तक प्रेस्क्राइब ही नहीं हुआ है, राइट। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अभी तक प्रेस्क्राइब ही नहीं हुआ है। 50 सबसेक्शन 2, राइट, तो वो अभी तक प्रेस्क्राइब ही नहीं हुआ है, वो कोई चिंता की बात नहीं। एग्जाम्पल 3 थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा है, ठीक है। जैन के अंदर टैली नहीं हो रहा, 800 रुपीज, वो चीज कॉमन है। फेब मार्च अप्रैल टैली हो रहे हैं। मई के अंदर 600 रुपीज का था, और जो जैन में छूट गया था ना 800 रुपए, वही 800 रुपए अब उसने भर दिए हैं। ऐसा कैसे हुआ सर? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा सप्लायर था वो क्वार्टरली रिटर्न भरता था, तो जैन फेब मार्च की क्वार्टरली रिटर्न उसने कब भरी होगी सर? 30th ऑफ अप्रैल को। 30th ऑफ अप्रैल को भरी होगी, तो आपको 1st ऑफ मई को दिखा होगा। मतलब अप्रैल की रिटर्न भरते तक नहीं दिखा होगा सर, मई की रिटर्न भरते वक्त ही काम में आ पाएगा वो, राइट। तो ये इस तरीके से कहानी आपके पास चलेगी। ओके, अब कैसे करें हम?
सर देखिए ऐसा है, फर्स्ट महीने के अंदर 200 प्लस 10%, नेक्स्ट के अंदर 800 प्लस 10%, उसके नेक्स्ट मंथ में 650 प्लस 10%, देन 750 प्लस 10%, और जो रिमेनिंग बच गया 560 वो रिमेनिंग लास्ट मंथ के अंदर अपन एडजस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो क्वार्टरली अगर आपके पास सप्लायर्स हैं, अगर आपके कोई ऐसे सप्लायर है जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं तो उसका आपको स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज यू मे लैंड अप इन ह्यूज ट्रबल। एक जब भी आप इसकी बारी करें तो ये एक सर्कुलर का रेफरेंस भी मैंने दिया है, ये सर्कुलर भी आप जरूर देख लें। इस सर्कुलर के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि अब 2A अपने आप में एक डायनेमिक फॉर्म है, तो कौन सा डेटा आपको 2A में कब का लेना है, ऐसा है जो भी डेटा आपको विजिबल होता है 11 तारीख को, उसके बाद अगर किसी ने खुद की GSTR1 भरी है वो आपको उस महीने के इस एडजस्टमेंट ऑफ रूल 36 सब रूल 4 के लिए कंसिडर नहीं करनी है। ये स्पेशल आप बात ध्यान रखिए, अदरवाइज इट इज कंफर्टेबल। कोविड रिलीफ हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 30 आपको क्यूमुलेटिवली अप्लाई करना है फेब टू अगस्त इन द रिटर्न फॉर सितंबर, राइट। तो ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑल्दो सितंबर के महीने की रिटर्न में, मतलब ये अक्टूबर मंथ में क्या क्या करना है एडजस्ट, कितना कितना हो पाएगा वो देखेंगे। अब कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें क्लोजर ऑफ बुक्स से रिलेटेड कुछ खास बातें डिस्कस करेंगे। पहली चीज ऐसा है सर, आप 100% केस में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम भी जरूर देखिए। क्लाइंट का आप ट्रेडिंग P&L जरूर देखें। P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में, आई रिपीट, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या कोई दूसरे तरह की इनकम है, क्या कोई अदर इनकम का पार्ट है। अच्छा, कई बार कुछ असेसीज P&L अकाउंट में इनकम ना ले जाकर खुद के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ले जाते हैं। कई बार कुछ असेसीज ऐसा भी करते हैं कि वो मतलब पर्सनल बुक्स और बिजनेस की बुक्स अलग अलग भी मेंटेन करते हैं। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब ये हो गया क्योंकि पर्सनल जो कैपिटल अकाउंट है, उस पर्सनल कैपिटल अकाउंट के अंदर ऐसा संभव है कि अदर इनकम दिख रही हो। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स आएंगी इनका आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप्स, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस के अंदर बिजनेस और प्रोप्राइटर अलग अलग नहीं माना जाएगा। तो ऑल्दो हमें ये बात पता ही है, लेकिन फिर भी एज रिकॉल करते हुए ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका खास ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब ये समझिएगा, क्या कोई कंपोजिशन डीलर ऐसा तो नहीं है कि वो जो कोई कमीशन इनकम दिखा रहा हो या कोई अदर इनकम दिखा रहा हो। सर कंपोजिशन डीलर कोई सर्विस प्रोवाइड कर सकता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग? कंपोजिशन डीलर कर सकता है सर्विस प्रोवाइड? सर कुछ अमेंडमेंट हुआ तो था यार, कुछ तो हुआ था, बिल्कुल कर तो सकता है सर, ऐसा याद तो कुछ अमाउंट तो कर सकता है सर, कर सकता है सर। 10% ऑफ टर्नओवर या 5 लाख रुपीज विचएवर इज हायर तक कर सकता है, उससे है ना, मतलब वहां तक की बात हो सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं हो पाएगी, ये ध्यान रखिए। कहीं ऐसा है क्या, आप सोचिएगा समझिएगा, क्या कोई केस ऐसा बनता है क्या कि मोटर व्हीकल है उसका रिपेयर का, इंश्योरेंस का ITC ले लिया? सर 1 Feb 2019 बोल रहा हूँ, 20 नहीं, 1 Feb 2019 के बाद से ये सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर क्लियरली मना हो गया है। ध्यान रखिएगा कि अब आप रिपेयर का, इंश्योरेंस का, मोटर व्हीकल का नहीं ले पाएंगे ITC, राइट। ऑल्दो देयर वर ह्यूज चांसेस कि ये शायद ITC इसका तो मिल ही जाएगा। मैं ये बात आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जरा देखिए सेक्शन 17(5) में लिखा हुआ था इन रेस्पेक्ट ऑफ, इन रिलेशन टू नहीं, क्योंकि अगर वहां पर इन रिलेशन टू लिखा होता जब तो इसका क्रेडिट वैसे भी नहीं मिलता, लेकिन वहां पर लिखा हुआ था इन रेस्पेक्ट ऑफ, उसके अकॉर्डिंग इसका क्रेडिट मिलना चाहिए था। ऑल्दो नाउ द पोजीशन ऑफ लॉ इज वेरी सेटल्ड कि इसका भी ITC आपको नहीं मिलेगा, और सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 अमेंड हो चुका है। कब से? 1 Feb 2019 से। पता है जो हम GST ऑडिट करेंगे 18-19, उसमें भी 2 महीने इसी चीज के हैं। और अब क्योंकि वो अमेंड हो गया है, तो ऐसा लॉ मेकर्स का इंटेंशन नजर आता है कि शायद इसका ITC शुरू से ही नहीं मिलना था। तो चलिए खैर, जो हो चुका वो तो हो चुका, उसका तो कोई इलाज नहीं है। मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि 17-18 भी आप ठीक करें, लेकिन कम से कम 18-19 हम जरूर ठीक कर सकते हैं, उसको हमें ठीक करना भी चाहिए। यहाँ पर ये अल्टीमेटली ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा आप समझिए, मोटर व्हीकल के इंश्योरेंस का GST एलिमेंट कितना छोटा सा अमाउंट होगा, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत छोटा सा ही अमाउंट है, लेकिन
अननेसेसरी इसके ऊपर नोटिस आएगा, अननेसेसरी वो इंटरेस्ट की डिमांड करेंगे, अननेसेसरी वो इसके ऊपर पेनल्टी की डिमांड करेंगे। क्या फायदा? इसको हम रिवर्स कर सकते हैं क्योंकि 18, 19 का जीएसटीआर 9 और 9C अभी पेंडिंग है, अभी ओपन क्लॉज है सब कुछ। एक और बात आप जरूर 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 ध्यान में रखें कि 3B में तो कहीं भी आपके पास इंटरेस्ट के जमा कराने की जगह नहीं है। आई अग्री, 3B के अंदर तो इंटरेस्ट अभी भी एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, जो शायद प्रोबेबली इस चीज का बहुत बड़ा फेलियर है, पूरे जीएसटी सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपन कई बार क्या करते हैं, मैं अपन से आप और मैं, सिर्फ आप और मैं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पैन इंडिया लेवल पे अगर बात करूं, मतलब ये डिस्कशन हम लोगों ने भोपाल में किया है, ये डिस्कशन हम लोगों ने कानपुर में किया है, लखनऊ में किया है, ये डिस्कशन हम लोगों ने अहमदाबाद में किया है, ये डिस्कशन हम लोगों ने पानीपत में किया है, ये डिस्कशन हम लोगों ने नोएडा में किया है, गाजियाबाद में किया है, सब जगह ये बात हो रखी। क्या बात हुई सर कि क्या ये इंटरेस्ट हमें अभी चुकाना चाहिए, क्या इंटरेस्ट हमें बाद में चुकाना चाहिए? देखिए ऐसा, टू माय अंडरस्टैंडिंग अगर क्लाइंट ने लेट भरा है टैक्स तो उसको इंटरेस्ट जरूर जमा करा देना चाहिए। एंड नाउ इट इज ऑलमोस्ट अ सेटल्ड लॉ, ऑलमोस्ट अ सेटल्ड कंसेप्ट, ऑलमोस्ट अ सेटल्ड प्रिंसिपल कि आपको इंटरेस्ट तो नेट लाइबिलिटी पर ही जमा कराना। मतलब अगर आपके पास आईटीसी है तो फिर उसको एडजस्ट करने के बाद ही आप इंटरेस्ट जमा कराने की बात करेंगे, वो बात तो बिल्कुल बराबर है। मतलब नेट आउटपुट लाइबिलिटी पर ही आपको इंटरेस्ट जमा कराना है, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। मैं इसके अंदर थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ूं, मैं इसके अंदर इस कंसेप्ट में अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ूं तो सुनिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात बनेगी। अगर क्लाइंट इसमें इंटरेस्ट जमा कराने को तैयार नहीं हो, राइट, या आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की स्थिति में ना हो, अब वो कैसे होगा सर? आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की स्थिति में ऐसे नहीं होंगे, मैं समझाता हूं आपको। क्योंकि हुआ क्या होगा, क्लाइंट के पास सपोज कभी अगर टैक्स भरने के रुपए नहीं होंगे तो वो कह देगा इस महीने की रिटर्न तो आप नील के लगा दो, और अगले महीने की रिटर्न में ये वाली आउटपुट लाइबिलिटी भी जोड़कर वो आपको बता देगा। समझ रहे? सो यू मे नॉट बी नोइंग कि उसने कब ऐसा किया, और कभी कभी आप वो इंटरेस्ट लाइबिलिटी निकाल भी नहीं सकते, राइट। तो उस केस के अंदर अगर वो जीएसटीआर 9C का केस है, देन डोंट फॉरगेट टू राइट द क्वालिफिकेशन और ऑब्जर्वेशन रिमार्क फॉर दिस। अगर आप में से किसी भी यूजर को, किसी भी मेंबर को, किसी भी प्रोफेशनल को अगर वो क्या अपने पास आइडियल क्वालिफिकेशंस और रिमार्क्स हो सकते हैं 18, 19 के, अगर वो किसी को भी चाहिए तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी, यू कैन इवन व्हाट्सएप मी, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा, आपको मेल कर दूंगा, जैसे आप कंफर्टेबल समझे, राइट। आपको कोई भी कैसी भी जीएसटी के अंदर कोई भी डिस्कशन भी करना हो तो भी यू कैन ऑलवेज कॉल मी, ठीक है? ठीक है। तो लाइबिलिटी टू पे इंटरेस्ट, आप इसका जरूर ध्यान रखें कि आप टाइमली बेस पर इंटरेस्ट जरूर जमा कराते रहें। अच्छा, केवल वो इंटरेस्ट जमा कराने की ही बात नहीं, अगर कोई इंटरेस्ट नहीं जमा कराए तो आप उसको क्वालिफाई जरूर करें, ठीक है। फिर वैल्यूएशन इश्यूज जरूर आएंगे रिलेटेड पार्टीज के केस में, हम इनका भी कभी ध्यान नहीं रख पाते हैं। अच्छा, केवल इतनी सी बात नहीं है इसमें, एक जो हमारे लिए जो रिलैक्सेशन पॉइंट है, जो सेकंड प्रोविजन है रूल 26 का, ठीक है, वो क्या कहता है, अगर आपके पास दोनों की दोनों पार्टीज को फुल आईटीसी की बात है, मतलब अगर आईटीसी का कहीं भी कोई लॉस नहीं हो रहा है, तो जो भी कोई अमाउंट बताया गया वो आपके पास ओपन मार्केट वैल्यू की कैटेगरी में आ जाएगा। अदरवाइज रिलेटेड पार्टीज में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो दैट शुड बी डन ऑन ओएमवी, ओपन मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओके, पेमेंट आपको 180 दिन में करना है। शायद ही किसी पार्टी ने ये चेक किया हो, शायद ही कोई पार्टी ऐसा कर पा रही हो। एंड ड्यूरिंग दिस कोविड रिजीम 6 महीने तो इसी टाइम पीरियड को हो गए हैं, तो क्या सर इसकी टाइम पीरियड की डेट नहीं बढ़ी? नहीं सर, इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। समझ रहे हैं आप? मतलब कोविड रिजीम में ही 180 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या लोगों ने पेमेंट्स कर दिए हैं? क्या आप इनवॉइस बाय इनवॉइस चेक कर पाएंगे? क्या आप इसमें फीफो मेथड से अप्लाई कर पाएंगे? सर फीफो मेथड से आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगेन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के अंदर एकदम क्लियर लिखा है, इफ द पार्टी फेल्स टू पे का रेफरेंस आप कैसे लगाएंगे? हमारे पास केवल और केवल वही एक पॉइंट बनेगा, ऑल्दो आई एम स्टिल ऑफ अ वेरी 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 फर्म व्यू कि आपको इस केस में कोई ना कोई क्वालिफाइंग रिमार्क तो डालना ही है, अदरवाइज आप अपनी बहुत बड़ी रिस्क लेकर चल रहे हैं।
ठीक है। एक और बात जो पर्सनल एक्सपीरियंस से 17-18 की ऑडिट करने के बाद जो समझ में आई है आपको, मेरे को, हम सभी को, कि जिन केसेस के अंदर हमने क्वालिफिकेशंस या ऑब्जर्वेशंस नहीं लगाए थे, जिन केसेस में हमने क्वालिफिकेशंस या ऑब्जर्वेशंस नहीं लगाए थे, उन केसेस में समझिए, उन केसेस के अंदर डिपार्टमेंट ऑडिट जल्दी करके और डिपार्टमेंट उसकी डिमांड जल्दी निकाल रहा है, राइट। आप अपनी पोजीशन जरूर सेव करके चलो। एक और स्पेशल बात, क्या सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग मतलब सेल वैल्यू क्या आपके एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 का पार्ट होना चाहिए? सर टू माय अंडरस्टैंडिंग किसी भी हालत के अंदर ये पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो भी सेल वैल्यू ऑफ लैंड या सेल वैल्यू ऑफ बिल्डिंग मतलब पोस्ट कंस्ट्रक्शन 100% कंप्लीशन के बाद जो भी कोई अमाउंट मिला बिल्डिंग के ऊपर, वो कभी भी आपके पास मतलब सप्लाई का ही पार्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है या कुछ और, इनफैक्ट वो शेड्यूल 3 के अंदर कवर्ड है। शेड्यूल 3 के अंदर कवर होने का मतलब हो गया कि वो सप्लाई ही नहीं है, और अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो उसकी सेल वैल्यू हम कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड कर ही नहीं सकते। ऑल्दो देयर मे बी सम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, सम प्रोफेशनल्स बिलीव कि हम इसे भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं और इसको ऑडिट ही तो करनी पड़ेगी, कर देंगे ऑडिट। लेकिन सर जो चीज आपके पास पार्ट ऑफ सप्लाई है ही नहीं, उस चीज का सेल वैल्यू आप कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर कैसे इंक्लूड करेंगे, राइट। ओके, फिर अपन और आगे समझे। ये वो साल है सर 1819 एंड 1920, ये वो साल है जिसमें ई-वे बिल पूरे 12 महीनों के लिए एप्लीकेबल थे। आप समझ रहे हैं, 17-18 में तो ई-वे बिल सिर्फ लास्ट के 2 महीने के लिए एप्लीकेबल था सर, लेकिन 18-19 में तो शुरू से ही एप्लीकेबल हो गया था। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। और ई-वे बिल के ऊपर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि सारे ई-वे बिल बने हुए नहीं है, जो कि होगा ही, आई एम ऑलमोस्ट सर्टेन, या फिर ई-वे बिल के अमाउंट्स चेंज्ड हैं इनवॉइस से, तो आप प्लीज अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो ऑब्जर्वेशन जरूर लिखें। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर किसी को भी वो मॉडल क्वालिफिकेशन चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। अच्छा, टीसीएस एंड टीडीएस प्रोविजंस 1 अक्टूबर 2018 से आ गए थे। इसका मतलब हम जीएसटी ऑडिट जो 18-19 की कर रहे हैं उसमें 6 महीने के लिए टीसीएस टीडीएस प्रोविजन सेक्शन 51-52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट वो भी अप्लाई हो चुके थे। ये टीसीएस टीडीएस जीएसटी क्या है कि इनकम टैक्स का, सर जीएसटी की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। इनकम टैक्स ऑडिट तो आपको मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छी आती है, राइट। तो इनकम टैक्स ऑडिट की हम यहाँ पे कतई बात नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 भी चेंज हुआ था 1 Feb 2019 से, अपन ने ड्यूरिंग डेलिब्रेशन इसकी बात करी भी है। व्हाट इफ आईटीसी ऑफ 18-19 इज नॉट अवेल्ड इन द सेम ईयर? क्या आप उस आईटीसी को बाद में अवेल कर पाएंगे? 18-19 का आईटीसी अगर आपसे छूट गया था, अगर आपसे 18-19 का आईटीसी छूट गया था, तो क्या आप इसे बाद में अवेल कर पा रहे थे? सर बिल्कुल कर पा रहे थे, बिल्कुल आपने अवेल कर लिया था, ऐसा आप अज्यूम कर लीजिए वाटरफॉल इफेक्ट के तहत, राइट। तो 18-19 का आईटीसी जो आपने नहीं लिया था, मान लीजिए कि आपने सितंबर 2019 तक ले लिया, और वो जो सितंबर 19 तक आईटीसी आपने नहीं लिया इनडायरेक्टली, मतलब वो आप आज ले लीजिए, लेकिन अमाउंट परफेक्ट रूप से मैचिंग मत करिए, भले उसको 2-3 रिटर्न्स के अंदर तोड़ दीजिए, राइट। तो ये जरूर एक प्लानिंग करिए, कम से कम इसमें आईटीसी का आपके पास लॉस नहीं होगा, लेकिन फिगर टू फिगर मैच नहीं हो जाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, नॉट ओनली दिस, क्या कोई 18-19 का आईटीसी ऐसा था जो हमने वाकई में अवेल नहीं करा था, ना हमने बुक्स ऑफ अकाउंट से अवेल करा था, क्या उसको आज ले सकते हैं? सर बिल्कुल ले सकते हैं। आप भूल गए सर, बीच में अपनी बात हुई थी, किसकी बात हुई थी सर? अपनी बात हुई थी AS5 की। AS5 का नाम किसी को भी ध्यान हो सर? AS5 का नाम नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, समझ रहे हैं आप? उसके अंदर पैरा 4 एंड पैरा 15, AS5 का पैरा 4 एंड पैरा 15 कहीं नोट कर रहे हैं तो जरूर कर ले, बहुत ज्यादा काम आएंगे वो, राइट। उसके थ्रू आप कर लें, बस इस तरीके से इसको आप P&L अकाउंट में शो कर दीजिएगा सो दैट इट इज क्लियरली विजिबल, ठीक है। आपने 18-19 का आरसीएम अगर बाद में चुकाया तो क्या करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर अपन ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं। अपन थोड़ी सी बात जीएसटीआर 9 में इसको कैसे एडजस्ट करेंगे वो भी देखते हैं, ये आखिरी के 2 पॉइंट्स को। फिर एडजस्टमेंट्स 17-18 एंड 18-19, जो अपना इंटेंशन था वो यही था, करेक्ट। जरा देखिए, आप ध्यान से सुनिए। हाँ जी, अगर जरूरत लगेगी तो मैं रिपीट कर दूंगा, सिर्फ ध्यान से आप सुनते जाइए। सबसे पहले तो अपन एक एक करके बात करें। अपन पहले बात करते हैं सिर्फ आईटीसी की बात अपन कर रहे हैं, थोड़ी देर आउटपुट लायबिलिटी की बात अपन नहीं करते, सिर्फ आईटीसी की बात कर रहे हैं।
तो अगर 17-18 का कोई ऐसा आईटीसी था, सिर्फ 5 मिनट सुन ले सर, जीएसटीआर 9 ने बहुत ज्यादा काम की बात है। 17-18 का कोई ऐसा आईटीसी था जो आपने 18-19 में लिया था। 17-18 का ऐसा आईटीसी था जो आपने 18-19 में अवेल करा, 18-19 में 3B में लिया। तो पहली बात, 17-18 की जीएसटीआर 9 भरते वक्त उसे टेबल 8C एंड टेबल 13 दोनों में दिखाना था, राइट? टेबल 8C एंड टेबल 13 दोनों में दिखाना था। सर मैंने तो एक में दिखाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक में तो दिखा दिया ना, कोई बात नहीं। अब से कोशिश करें कि 8C और 13 दोनों में दिखाना है, ठीक है? ओके। अब अगर आपके पास कुछ ऐसे केसेस हों जिसमें जीएसटीआर 9 उन्होंने 17-18 का नहीं भरा हो और ये वाला केस हो जिनका आईटीसी आपको अगले साल एडजस्ट करना है, तो प्लीज भरिए सर। 17-18 का आज भरेंगे, लेट फीस नहीं लगेगी क्या? सर लेट फीस नहीं लग रही है, समझ रहे हैं आप? लेट फीस नहीं लग रही है। 17-18 की एनुअल रिटर्न हम आज भरते हैं तो लेट फीस नहीं लग रही है, प्लीज आप उसे भर दें सो दैट असेसमेंट कैन बी इजीली डन, समझ रहे हैं? और आप उसे टेबल नंबर 8C और टेबल 13 दोनों में जरूर दिखा दें, पहली चीज। ओके। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा आईटीसी था जो 17-18 में आपने ज्यादा ले लिया था और 18-19 में आपने उसको रिवर्स किया है, तो जीएसटीआर 9 और 17-18 भरते वक्त, 17-18 की जीएसटीआर 9 भरते वक्त टेबल 8C में तो नेगेटिव दिखाना था और टेबल नंबर 12 में दिखाना था। टेबल 12 में तो पॉजिटिव ही है और टेबल 8C में नेगेटिव दिखाना था, एक जगह पे दिखा दिया, कोई बात नहीं। इस साल क्या एडजस्ट करें सर? ऑटोमेटिकली टेबल नंबर 6 से कम आ रहा होगा। अब टेबल नंबर 6 से जो कम आ रहा है, आपको रिड्यूस्ड फिगर ही, आपको वो रिड्यूस्ड फिगर ही टेबल नंबर 6 भी भरना है। और अगर टेबल नंबर 6 से ज्यादा आ रहा है ऑन अकाउंट ऑफ कि 17-18 का आपने 18-19 में अवेल करा, 17-18 का आपने 18-19 में अवेल करा, तो टेबल नंबर 6 से ज्यादा आ रहा होगा, वो ज्यादा अमाउंट ही आपको टेबल नंबर 6B में शो करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, कोई रत्ती भर भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? नहीं सर, एक मेरे पास अभी चैट बॉक्स में आया है 17-18 की लेट फीस लग रही है, नहीं लग रही है सर, मैंने कल ही चेक करी है, 17-18 की कोई लेट फीस नहीं लग रही है, आप प्लीज दोबारा चेक कर लीजिएगा। ओके, खैर एनीवेज अब हम उसी केस में, आईटीसी के केस में 9C वाले केसेस की बात करें। सिर्फ 2 मिनट सुनिए, 9C में क्या चेंज करना है। देखिए ऐसा है, अगर आपका केस ऐसा हो कि 17-18 का आपने 18-19 में लिया हो, तो 18-19 का 9C भरते वक्त, आई रिपीट, 18-19 का 9C भरते वक्त आपको सिर्फ इतना सा करना है। कितना? सिर्फ इतना सा करना है कि आप, अच्छा आपने नेक्स्ट ईयर में लिया है वाला बोल रहा हूँ, 8C और 13 वाला केस बोल रहा हूँ, तो आपको टेबल नंबर 12B में पॉजिटिव लिखना है बस। 9C के टेबल नंबर 12B में पॉजिटिव लिखना है बस, ठीक है? और अगर ऐसा हो कि 17-18 में आपने ज्यादा ले लिया हो, 18-19 में आपने रिवर्सल की बात करी हो, तो आपको टेबल नंबर 12B में, 9C की बात कर रहा हूँ, टेबल नंबर 12B में नेगेटिव लिखना है बस, ठीक है? जहां तक आउटपुट टैक्स लायबिलिटी की बात है, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी के लिए तो सबसे पहली बात तो ये बनेगी कि आप इसे जीएसटीआर 9 में किस बेसिस से स्टार्ट करेंगे। आप जीएसटीआर 9 में आउटवर्ड सप्लाई को, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी को किस बेसिस पे स्टार्ट कर रहे हैं? सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, जीएसटीआर 1 के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं, या 3B के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं? एम आई एम्पली क्लियर कि आप आउटवर्ड सप्लाई को किस तरीके से जीएसटीआर 9 में इनिशिएट कर रहे हैं? समझ रहे हैं आप? कुछ भी आपका आंसर हो आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, हम जीएसटीआर 1 के बेस पे स्टार्ट कर सकते हैं, या 3B के बेस पे स्टार्ट कर रहे हैं। आपको कुछ भी मन में हो तो आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए कि आप किस तरीके से उसको रिप्लाई करना चाह रहे हैं, किस तरीके से आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं। कोई भी लिखना चाहे चैट बॉक्स के ऊपर। सात आठ लोग मेरे को पर्सनल चैट बॉक्स से भेज चुके हैं, प्राइवेट बेस पर जो है। ओके, अराउंड 12-13 लोग हैं अब तक जिन लोगों ने मुझे भेज दिया है। सर एवरेजली जो है, एवरेजली लोग ये बोल रहे हैं कि जीएसटीआर 1 या बुक्स, जीएसटीआर 1 से या बुक से, एवरेजली लोग इस तरीके से बोल रहे हैं। समझिए ध्यान से सर, मेरी बात समझिए आप, सुनिएगा ध्यान से आप। जिस नोटिफिकेशन में जीएसटीआर 9 आया था, मैं बात कर रहा हूँ नोटिफिकेशन नंबर 74 डेटेड 31 दिसंबर 2018, उसके
इंस्ट्रक्शन नंबर 4 में ऐसा लिखा था, सुनिएगा, कि आपको टेबल नंबर 4 भरनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3B। आपको टेबल नंबर 4 भरनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3B, मतलब टेकिंग 3B एज द बेस। समझ रहे हैं आप, टेकिंग 3B एज द बेस। और जहां तक ब्रेकअप की बात है, B2B और B2C, उसके लिए लाइन उन्होंने लिख रखी थी, उसके लिए लाइन क्या लिख रखी थी, सुनिएगा ध्यान से। उसके लिए उन्होंने लाइन लिख रखी थी कि सिर्फ और सिर्फ आप चाहें तो मतलब यू मे लिखा था वहां पे वर्ड, यू मे यूज डिटेल्स ऑफ GSTR1 फॉर द पर्पस ऑफ ब्रेकअप बिटवीन B2B एंड B2C, अदरवाइज। ठीक है, एनीवेज सेशन अपना GSTR9 का नहीं है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी और क्वेश्चंस कोई हो। अमोक सर, कोई चैट बॉक्स पर क्वेश्चंस हो? Yes, thank you so much, Ankit Samani sir. We can start with the question session. So we have received some questions. So on behalf of them, I can ask. The first question is from Abhishek Mittal. He is asking whether we can pay and take credit of RCM of financial year 18-19 now. ओके सर, देखिए बेसिकली बात तो ये है सर, अगर आपके पास कभी भी वो अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट का रहा, मतलब आरसीएम के ऊपर जो जीएसटी लाइबिलिटी है, अगर वो बहुत बड़े अमाउंट की रही, एंड इफ द असेसी इज रेडी टू गो इवन अप टू सेकंड एपिलेट, ठीक है, तो हम वो सेक्शन 31(3)(f) की बात यहां पर यूज कर लेंगे कि सेल्फ इनवॉइसिंग क्योंकि नहीं हो रखी है। अब क्योंकि सेल्फ इनवॉइसिंग यहां पर नहीं हो रखी है, उस कारण से हमारे पास क्रेडिट अवेलमेंट की डेट भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट। क्रेडिट अवेलमेंट की डेट कैसे बढ़ जाएगी सर? क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में वो डेट ऑफ इनवॉइस की बात करता है, और आरसीएम के केस में इनवॉइसिंग मुझे खुद को करनी है, सेल्फ इनवॉइसिंग। यस, ये बात सच है कि क्योंकि टाइम ऑफ सप्लाई डिफरेंट हो गया, तो वो लाइबिलिटी, वो पेनल्टी मैं झेलने को तैयार हूं। बाकी फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस डिस्प्यूटेड मैटर है, आप क्लाइंट को जरूर बोलकर रखिएगा, आगे जाना पड़ेगा, नोटिस आएंगे, सेकंड एपिलेट तक रुकना पड़ेगा, अमाउंट बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो क्रेडिट आपको मिल जाएगा सर। आज के 3B में पे कर दें और आज उसका अवेलमेंट ले लें। जहां तक इसको GSTR9 में शो करने की बात है, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जुलाई एंड अगस्त 2019 के अंदर CBIC ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था। उन्होंने ऐसा बोला कि अगर 17-18 का आपने 18-19 में चुकाया है, तो उसे ऐसे आप मान लीजिए कि ये प्योरली 18-19 का ही है, राइट। प्योरली आप ऐसा अज्यूम कर लीजिए कि इसे 18-19 में ही एडजस्ट करेंगे 100%, 17-18 में कुछ भी नहीं करना है। सेम वो आइडियोलॉजी हम 18-19 की 19-20 तक लगा सकते हैं। Okay, next question, sir. Yeah. The second question we have received from Siddharth Mittal. So he is asking, already SSE having huge balances in GST ECL account, then reversal not required? Sorry, sir. Question is not very clear. Yeah. Let me repeat. Already SSE having huge balances in GST ECL account, then reversal not required? नहीं, रिवर्सल तो रिक्वायर्ड होगा ना सर। अगर आपने आईटीसी गलत ले रखा है, ज्यादा ले रखा है, तो रिवर्सल तो रिक्वायर्ड होगा। अगर अभी तक यही हो सिद्धार्थ जी, तो शायद उनको अनम्यूट करा पाएंगे क्या सर अपन? अगर सिद्धार्थ जी यही हो तो मैं शायद क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा अभी। जी, अगर वो यही हो तो तब तक अपन नेक्स्ट भी कर सकते हैं डिस्कस। I will take Siddharth's question next. As per law, reverse charge ITC of 17-18 and 18-19 can be availed today, considering payments made today. यस सर, एग्जैक्टली दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड। आरसीएम की लाइबिलिटी जो भी कोई अमाउंट है वो अपन आज पे ऑफ करेंगे, तो अपन उसका आईटीसी आज ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे सर। अमाउंट बड़ा होना चाहिए, सेकंड एपिलेट तक जाना पड़ेगा, कोई सेम नहीं बात सर। ओके, the second next question is CA Prakash Kumar, who is asking repairs services related to pumps or motors on agricultural land to farmers for cultivation are exempt or not? रिपेयर सर्विसेज टू फार्मर्स एग्रीकल्चर पंप, सर मेरे ख्याल से तो रिलेटेड टू पंप, समझ गया सर, समझ गया सर। मेरे ख्याल से तो ये एग्जेम्प्टेड नहीं होंगी। फिर भी एक बार मतलब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन नंबर 13 तो एक बार उसके लिए चेक करना ही पड़ेगा। आई बिलीव फिर भी नोटिफिकेशन नंबर 12 के अंदर ये एग्जेम्प्टेड नहीं होगी, मतलब 12/2017 डेटेड 28 जून, वो एग्जेम्प्टेड नहीं होंगी सर, टू माय अंडरस्टैंडिंग।
अगर एग्जेम्प्टेड नहीं है तो फिर 18% लगेगा इस पे टैक्स। Yeah, next question. Sorry for the interruption. Next question we have received again from CA Prakash Kumar. If client is composition dealer and makes payment under DRC 03 for short payment of GST in earlier return, then how to reflect that in annual return GSTR 4? बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है सर, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है कि अगर आपने डीआरसी के थ्रू अगर पेमेंट कर दिया तो हमें से टेबल नंबर 4 के अंदर कैसे शो करें या जीएसटीआर 9 में किस तरीके से शो करें। सर बिल्कुल ये एक बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर ये आउटपुट आउटवर्ड सप्लाई की अगर बात है तो हम इसे आउटवर्ड सप्लाई के अंदर तो बढ़ा दें और देन टेबल नंबर 9 टैक्स पेएबल के अंदर हम इसे दोबारा कम कर दें और ये जो भी हमने ट्रीटमेंट करा इसको 9C पे हम एक सेपरेट नोट के तौर पर लिख दें तो ये कहानी बहुत बहुत क्लियर हो जाएगी with a clear mentioning with a clear mention of चालान number with a clear mention of चालान number of DRC 03. Okay, the next question is again from Siddhartha. As sale of land is neither supply or services, then where we can show such amount in GSTR 1? I think sir show करना ही नहीं चाहिए। वो जो आपके पास सप्लाई ऑफ लैंड है या सप्लाई ऑफ बिल्डिंग आफ्टर कंप्लीशन है आफ्टर कंस्ट्रक्शन है वो कहीं भी सर शो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि वो सप्लाई ही नहीं है। मतलब वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई की तो बात बाद में आएगी, पहले सप्लाई तो हो। तो टू माय अंडरस्टैंडिंग क्योंकि वो शेड्यूल 3 में कवर्ड है तो वो सप्लाई का ही पार्ट नहीं है और इस कारण से ना तो जीएसटीआर 1 में आएगा, ना ही वो जीएसटीआर 3B में आएगा, ना ही वो आपके पास जीएसटीआर 9 में कहीं भी आएगा। ना ही सर वो अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर टर्नओवर की डेफिनेशन में गया होगा। तो क्योंकि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टर्नओवर की डेफिनेशन में नहीं गया और जीएसटी रिटर्न्स में भी नहीं गया तो इस कारण से वो कोई पेंडिंग रिकंसाइलिंग आइटम भी नहीं आएगा। अच्छा एक क्वेश्चन सर कुछ प्राइवेटली आया मेरे पास चैट पे, मैं पढ़ता हूँ। मयंक जी ने बोला बट सर you told that physical possession not necessary, then why problem due to COVID or is this interpretation limited to bill to ship to model? नहीं सर, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के लिए जो अपन रेफरेंस दे रहे थे उस चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो केवल कोविड की बात नहीं है, फिजिकल पोजेशन ऑफ बिल की जरूरत तो नहीं आएगी, वो बात तो एकदम ठीक है। लेकिन अगर सॉफ्ट कॉपी के अंदर है देन इट मस्ट बी डिजिटली साइन, ये जरूर है। सिद्धार्थ जी ने बोला ऑलरेडी एसएससी हैविंग ह्यूज बैलेंस इन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर अकाउंट, हाँ ये हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। In case of nil rate supply, we are liable to reverse ITC under रूल 42 एंड 43। बिल्कुल आपको रिवर्स करना ही पड़ेगा रूल 42 43 के अंदर। मयंक जी बोल रहे हैं व्हाट इज द पेमेंट रिसीव फ्रॉम डेटर इज लेस ड्यू टू इज इंसॉल्वेंसी। अगर आपको डेटर से पेमेंट अगर कम मिला है ड्यू टू इंसॉल्वेंसी तो आपको सर रिमेनिंग अमाउंट तो बैड डेट्स के अंदर शो करना ही पड़ेगा। आईटीसी की प्रॉब्लम उसको हो सकती है सर, आईटीसी की प्रॉब्लम आपको तो कभी आएगी नहीं उसमें। फिर है लेट फीस 17-18 की लग रही है, कुणाल जी बोल रहे हैं नहीं सर वो नहीं लग रही है, आप एक बार चेक कर लें। फिर ठीक है सर, मेरे पास भी यही क्वेश्चंस थे सर। वन मोर क्वेश्चन वी आर रिसीविंग फ्रॉम नूपुर अग्रवाल, शी इज आस्किंग फॉर द शेयरिंग पीपीटी दैट वी कैन टेक। हाँ वो शेयर हो जाएगी सर। मैं एक मिनट सर, मैं कोशिश करता हूँ अभी यहीं पर ही हो जाए शेयर। या सर हम जयपुर ब्रांच की वेबसाइट के ऊपर उसको लॉन्च कर देंगे तो किसी को भी चाहिए तो वहीं से वो जी डाउनलोड करने हम अपलोड कर देंगे सर उसको, जैसे आप देंगे ना। जी श्योरली सर। As of now we have no more questions now, so we can end the session from here. Thank you so much, and I will now ask our Chairman Anil Yadav sir to say something, or we'll go for the vote of thanks. थैंक यू सो मच अंकित सर, बहुत अच्छा सेशन रहा और आई थिंक जो भी क्वेरीज थी आईटीसी की और इससे रिलेटेड वो पूरी सॉर्ट आउट हो गई है। फिर भी इनकेस सर अगर कोई क्वेरी रहेगी और जयपुर ब्रांच के पास आएगी तो डेफिनेटली हम आपको पिंच करेंगे, फिर से परेशान करेंगे सर। अरे सर एनी टाइम सर, एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आमोक, थैंक यू सो मच और थैंक्स टू ऑल। आप सब आज 2 अक्टूबर छुट्टी का सा थोड़ा माहौल था फिर भी आए। कल हमारा नोटिस के ऊपर है
और देन फिर 4 तारीख को जीएसटी ऑडिट के ऊपर है, और देन फिर हमने 8 तारीख से इनकम टैक्स की पाठशाला हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you. Anil Yadav, sir, our branch chairman. Thank you, Ankit, sir, for sharing your knowledge, for giving us time, your valuable time. I think all of us are benefited from this. And from this, I would like to thank all our participants also, because of them, the webinar is successful now. So thank you so much, all the participants. Thank you so much, sir. Again, thank you once again. Bye. Thank you, sir. Thank you.